Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to another round of our exciting workshop on time management. In this session, we have partnered with the students of our prestigious University of Karachi and is brought to you all by Circle Women Pakistan. Circle Women's mission is to advance women's economic participation and empowerment through innovative and entrepreneurship, advocacy campaigns, and research. We develop and support the entrepreneurial and leadership capacity of women and youth in Pakistan to bring about economic growth and social change. Some of the initiatives by Circle include Tech Karo, She Loves Tech, and Elevate. Circle believes that it is critical for Pakistan's progress to invest in youth, especially women, to build their confidence, capacity, and create platforms for them to bring their ideas forward. These workshops are supported by Frederick Nolan Foundation for Freedom, which aims to contribute to the enhancement of soft skills in the fields of entrepreneurship, business management, strategic communication, business leadership, and responsible citizenship. Today's session on time management will be conducted by Mr. Sikandar Pizenjo, who is an external engagements manager at the Dowd Hercules Corporation. He engages with the global thought leadership, multilateral organizations, and international stakeholders to learn, contribute, and bring back learnings to the group. He's also the curator of Global Shippers Karachi, the youth initiatives of the World Economic Forum, and the co-founder of Balochistan Youth Action Committee. Without further ado, let me welcome Mr. Sikandar to take the session forward from here. Thank you. Thank you very much, the team of Circle, for having me here. I'm very much excited to interact and talk to the University of Karachi students. May I know how the session will be conducted? Is it everyone online will be attending, or is it the format that was shared before, that a classroom full of students will be watching it from their screen? So I get the So fair idea. Sikandar, there were like tiny changes because of the law which was just recently passed. So everyone is just gonna be attending virtually online. So it's not gonna be a Okay, I classroom think setup. Yeah. okay, much easier, and I hope even more interactive. Um, Yeah. Before I begin, can I ask everyone, or those who really want to, can you please turn on your screen so it doesn't feel like I'm talking to myself? Come on, guys, you can do it. I'm working from home today as well. No tickers, no one's turning on the screen. Can you? Oh, okay, we have one. Good job, man. Okay, I want few more to turn on their screens at least, please. Sorry, guys, this is the problem of working from home. Constant distraction. Okay, let's start. My name is Sikandar Bisanjo. So today's session will be on time management, but it won't be like a lecture thing or a trainer, because I'm not a trainer. I'm not a lecturer. I'm not a teacher. I'm just here
I'm just here to share my own experiences and also to learn from you guys as well, how you manage your time. Um, so my introduction was that Sikandar is an external engagements manager. This is the role that I've recently acquired like 2 weeks ago. Have you heard of Daud Corporation or Daud Hercules? Guys, use the chat. I'm reading the chats as well. Please use the chat because I really want that this session um, uh, this session is very interactive. मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे से बात कर सकें rather than just you guys listening to me. Have you guys heard of Daud Hercules or Daud Corporation? Have you heard of Angro? Uh, Sorry for the distractions here. Uh, so Daud Hercules is, I don't know why they are being so um, clingy today. Normally they are not. Guys, please. So these are the two stray cats that we have adopted. जो last बारिशें हुई थी कराची में, वहाँ पे, so I saw these two kittens in our house, soaking wet. बहुत ही छोटे थे. So we just gave them a bit of milk. और तब से ही हमारे घर पे हैं. तब से they are like everywhere. So Daud Hercules is an investment company. It's one of the family businesses of Pakistan. It's one of the largest family businesses of Pakistan. Engro is part of Daud Hercules. Lawrencepool is part of Daud Hercules. There are a lot of other companies which are part of Daud Hercules. I've joined the team as the manager of external engagements. और इसका मकसद external engagements का मकसद ये है कि जितने भी ग्रुप के बाहर um, guys, give me just 2 minutes. Sorry for the delay. I think let me just go inside. मैं कोशिश कर रहा था कि मैं जरा weather भी enjoy कर सकूं, लेकिन I don't think with these distractions I actually can. Just give me two minutes.
Hello again. Can you guys hear me now? Yes. Okay, brilliant. Um, Guys, can you also show your videos? At least just a few of you, so I know that I'm talking to people. और कोई भी questions हो, कोई भी concerns हो, please put it in the chat here. अच्छा, Dawood Hercules is an investment company. We are one of the largest family businesses. 103 साल से हम operate कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में. Engro is part of us. Lawrence Woods is part of us. There are a lot of other companies which are part of us. मेरा जो primary role है, वो है external engagement. External engagement ये नहीं होगा कि group से बाहर होगा. मेरी जो engagement होगी वो बाहर होगी, पाकिस्तान से बाहर. उसमें हमारे multilateral organizations हैं, जैसे World Economic Forum हो गया, अटलांटिक काउंसिल हो गया, ब्लूमबर्ग इकोनॉमी हो गया. उनसे मेरी कोऑर्डिनेशन रहेगी कि पाकिस्तान में हम क्या चेंजेस लाना चाहते हैं थ्रू ग्रुप, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप दैट वी वांट विद देम. उसके अलावा जितने भी इन्वेस्टमेंट हमारे पोर्टफोलियोज हैं बाहर एंग्रो के या ग्रुप के एनी कंपनी के, वो सारे हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू होंगे. दिस इज जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट माय जॉब इंटेल्स. अब इस तरह के जॉब्स में, इस तरह के काम में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि व्हेन यू आर वर्किंग विद द ब्रॉडर एस्पेक्ट या एक बड़े काम के साथ आप काम कर रहे होते हो, तो आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो बिल्कुल एक सीधी तरह नहीं होती. मतलब इट्स नॉट वेरी रिजिड. आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, एक बेसिक सी जॉब डिस्क्रिप्शन है, एंड देन यू आर ऑल ओवर द प्लेस. कभी आपको एक क्राइसिस सिचुएशन आ रहा होता है, कभी ये आ रहा होता है. फॉर इंस्टेंस आज हमारे 3 सेशंस हैं एक्सक्यूज मी, 3 सेशंस हैं कंट्री स्ट्रेटेजी डायलॉग के नाम से. पहले सेशन में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हम बात कर रहे होंगे, सेकंड में असद उमर हैं, थर्ड में हमाद अजहर है, ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो इस तरह के अचानक से हम पे सेशंस आ रहे होते हैं जिसमें वी हैव टू मेक श्योर कि the group's representation as well. The point is that without effective time management, ये बिल्कुल नहीं हो सकता. And this is not just true for a big organization. ये स्टूडेंट लाइफ में भी आपको उतना ही आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी इसको. जब आप अपनी पहली जॉब स्टार्ट करेंगे तब भी आपको इतनी ही इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है. अच्छा, पहले डिस्कस करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज टाइम मैनेजमेंट. इज इट जस्ट मैनेजिंग योर टाइम? अब आपसे मैं पूछूंगा, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट. मतलब आप इस सेशन में आज क्यों हैं? इफ यू कैन राइट इन द चैट, व्हाई आर यू इन दिस सेशन. आपको क्या लग रहा है मैं आपको क्या सिखाऊंगा आज? चैट में लिखें गाइस कि आप क्यों इस सेशन में हैं, और आपको क्या लगता है कि व्हाट विल यू गेन फ्रॉम दिस सेशन, ताकि मुझे आपके एक्सपेक्टेशंस का आइडिया हो जाए और मुझे एक आइडिया हो जाए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग टाइम मैनेजमेंट की है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज इट. और कोशिश करें कि इसको इंटरैक्टिव बनाएं, क्योंकि अब 2 घंटे अगर मेरा सेशन है, मैं कोई लेक्चर नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ. मैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ आपसे शेयर करूंगा, और आपसे एक मुझे खुद एक इंटरेक्शन भी चाहिए थी कि द अमेजिंग स्टूडेंट्स ऑफ कराची यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स से वैसे भी इट्स ऑलवेज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. तो लेट्स ट्राई टू मेक इट वेरी इंटरेक्टिव, ताकि अच्छे से हमारा सेशन जा सके. कीप राइटिंग इन द चैट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई आर यू हियर, आज के सेशन में आप क्यों हैं. या अगर कोई अनम्यूट करना चाहता है अपने आप को, कोई माइक पे बताना चाहता है, स्टिल गुड इनफ. एक दो मिनट दे देते हैं, सोचा. Let me share my screen. Um, can the host make me the co-host so I can share the screen? Yeah, sure. Please try now. Yeah.
ओके, जॉब, स्टडी और अदर थिंग्स को मैनेज कैसे करेंगे ये बताएगा। परफेक्ट। Planning about how to divide our time between specific activities. Very good answer, Zina. To learn the importance and complexity of time. Very well. Because we will learn something new. I think that's a very good answer, that we will learn something new. So that means कि um, जो group आपकी dynamics है, um, it's a curious place. You're just curious कि यार अच्छा time अगर एक corporate manager कैसे manage कर रहा है, हम कैसे manage करेंगे? We all can learn something from each other through our own experiences. मैं भी student रहा हूँ, मैं भी मैंने bachelor's किया है, मैंने master's किया है, मेरी भी वही experiences हैं जो आप hopefully यहीं से गुजर के या मुझसे अच्छा करके यहाँ से गुजरेंगे. So it's always a learning experience. That's a good answer. Let me share my screen. Can you all share? Can you all see the screen here? Yes. Perfect. So we have just a second. So we have done the very introductions के हम क्या हैं. So a very basic explanation of what is time management. I think आप लोगों ने बिल्कुल सही किया था आंसर के how to manage your time most effectively and efficiently, and to allocate right amount of time to a specific activity. इसका क्या मतलब है? Let me give you a few examples rather than sharing my screen. देखिए, the most important bit of time management is कि आप अपना टाइम एलोकेट किस तरह करते हैं. आप नेटफ्लिक्स को कितना टाइम देते हैं, आप अपने मैथ्स के सब्जेक्ट को कितना टाइम देते हैं, आप अपनी आउटडोर एक्टिविटीज को कितना टाइम देते हैं. दिस ऑल कम्स डाउन टू योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. So there are couple of essential elements जो मैं आपको बताऊंगा, and I will really want के आप लोग note down भी करते जाएं ये as we go along. The first is effective planning. This is the most I think fundamental thing when you come for the time management. आप manage कभी नहीं कर पाएंगे जब तक आप plan नहीं कर पाएंगे इस चीज के लिए. मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा. सो देखिए, मैंने अब शुरू में बताया कि मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेसर लेक्चर नहीं हूँ. आई विल ओनली बी स्पीकिंग थ्रू माय ओन एक्सपीरियंस. आपको हो सकता है कि आपका ये एरिया ना हो सकता है आप प्लान डिफरेंटली कर रहे हो. सो प्लीज मुझे बताइएगा कि आप किस तरह प्लान करते हैं. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. मैं ये नहीं कह रहा मेरा मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि ये जो मेथड मैं अब फॉलो कर रहा हूँ, ये अभी से मैं फॉलो नहीं कर रहा, ये इवॉल्व होता गया है, स्लोली ग्रेजुअली इवॉल्व होता गया है. बहुत सारी मिस्टेक्स के बाद, बहुत सारी लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बाद इवॉल्व होके यहाँ तक आया है. होपफुली एंड आई एम श्योर कि आगे भी इवॉल्व होता रहेगा. आई विल ऑल्सो शेयर सम टूल्स विद यू के मेरी डे टू डे टूल्स में क्या क्या यूज करता हूँ. ठीक है. सबसे पहला है अफेक्टिव प्लानिंग. अफेक्टिव प्लानिंग का मतलब क्या है? um, सबसे पहले तो ये है कि यू प्लान योर डे इन एडवांस. जैसे कल मैं क्या करूंगा, आई एम नॉट गोना प्लान इट टुमारो, आई विल प्लान इट टुडे, और आई प्लान इट यस्टरडे कि कल जो मेरी मेजर एक्टिविटीज होंगी वो क्या है. मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि मेरा एक टू डू लिस्ट होता है, और उस टू डू लिस्ट में मैं लिखता रहता हूँ कि यार मुझे क्या-क्या करना है. फॉर एग्जांपल मुझे अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करने हैं, मुझे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, वो वाली कॉन्फ्रेंस में मैं लिस्ट डाउन करता हूँ कि कौन-कौन से लोग हैं जिनसे मुझे नेटवर्किंग करनी है, फॉर व्हाट रीजंस. यू ऑर्डर योर एक्टिविटीज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है उस दिन के हिसाब से. एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि यार प्रायोरिटी क्या है, उसके बाद आप टाइम एलोकेट करें उसको कि यार इस प्रायोरिटी को, या फर्ज करें जो आपके टैक्स रिटर्न्स फाइल करने, इसको मैं कितने घंटे दूंगा. 1 घंटा दूंगा, 15 मिनट दूंगा, या जो कॉन्फ्रेंस है कॉन्फ्रेंस में मैं कितना टाइम एलोकेट करूंगा, नेटवर्किंग में मैं कितना टाइम एलोकेट करूंगा. मैं क्या करता हूँ कि टू डू लिस्ट में, सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ टास्क दैट हैव टू डू, तो वो सबसे लेफ्ट कॉलम में आते हैं. एंड देन देर आर टास्क दैट आई एम डूइंग राइट नाउ. सो अगर मैं फर्ज करें मैं स्टार्ट कर लिया मैंने कॉन्फ्रेंस, तो मैं यहाँ से ये डूइंग में ले आता हूँ. आई विल शेयर माय सम सॉफ्टवेयर विद यू एज वेल कि मैं किस तरह कर रहा होता हूँ. एंड व्हेन इट्स डन, चेक, ग्रीन टिक, चेक आ गया. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट योर प्लानिंग. टिक द वंस दैट यू ऑलरेडी कंप्लीटेड, मतलब इनको बस चेक करते रहे. जैसे ही आप कंप्लीट कर लें टास्क, चेक कर लें. ठीक है, ये हो गया आपकी प्लानिंग, अफेक्टिव प्लानिंग. सेकंड एलिमेंट क्या है?
अच्छा गाइस, अगर मैं क्लियर नहीं हूँ, मेरी आवाज मुझे प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है? फिलहाल तो क्लियर है ना? Yeah. ओके, परफेक्ट। ठीक है। सेकंड एलिमेंट है, आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें और कॉन्स्टेंटली इनको सेट करते रहें। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग विदाउट गोल्स डज नॉट मेक सेंस। उसका यही मतलब है कि आप समंदर में हैं और आपके कैप्टन को पता नहीं है कि रास्ता कहाँ है, आप बीच में हैं। दैट्स लिटरली हाउ इट इज। आपका आप अगर देखें, आप सब अभी स्टूडेंट्स हैं, बट यू विल गेट इनटू द वर्क लाइफ। बहुत सारे लोग के अपने बिजनेसेस होंगे, बहुत सारे लोग अलग बिजनेसेस में काम कर रहे होंगे, लेकिन लीडरशिप आपका रोल जरूर आएगा, कहीं ना कहीं तो जरूर आएगा इंशाल्लाह। बी इट योर ओन बिजनेस और बी इट वर्किंग फॉर समवेयर एल्स, दैट डजंट रियली डिफरेंशिएटिंग, बट यू विल गेट लीडरशिप रोल्स। और लीडरशिप रोल्स का सबसे मेन आई थिंक इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है, वो ये है कि आप कैसे अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। मैं अगर आपको अपनी हिसाब से एक एग्जांपल दूं, मैंने आपको कहा कि मैंने डीएच दाऊद अल्कलीस अभी ज्वाइन किया। उससे पहले मैं था कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप, केएसबीएल में। केएसबीएल में उनका जो सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप है, आई वाज रनिंग दैट सेंटर। तो मेरी टीम में तकरीबन 5-6 लोग थे जो मेरे साथ कॉन्स्टेंटली वहां पे काम कर रहे थे, इंटर्न्स वगैरह के अलावा। अब आप खुद सोचें कि अगर मैं अपने लिए या अपने सेंटर के लिए या अपने काम के लिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करूंगा, मेरी टीम क्या करेगी? सो मेरी टीम, मैं जिस जब भी सुबह आऊंगा वो मुझे देखेंगे कि यार, अच्छा सिकंदर, आज हम क्या करें? सो इंस्टेड ऑफ सेटिंग दोस गोल्स एवरी डे, आप ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बिफोर यू सेट देम, कि यार ये हमारे ब्रॉडर गोल्स हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी तरफ हमें जाना है। ठीक है, ये हो गया। अब कैसे जाना है, दैट इज योर नेक्स्ट थिंग, कि किस तरह आप इनको टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट सेट करेंगे टू गो टू दैट फार गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ये हो गया आपका सेकंड मेजर एलिमेंट। आपका थर्ड मेजर एलिमेंट क्या है? इसका टाइम मैनेजमेंट का। एनी गेसेस? थर्ड मेजर एलिमेंट है आपकी डेडलाइंस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट डेडलाइंस। I can't even emphasize enough on this, क्योंकि as humans, as human, हमारी नेचर है कि अगर हमें पता है यार ये करना है तो हम कर देते हैं, यार आज नहीं कल कर लेंगे, आज मौसम जबरदस्त हो रहा है, आज घर पे थोड़ा सो लेता हूँ, कल कर लूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट डेडलाइंस कि यार ये मुझे आज के आज ही करना है या कल की कल करना है। दिस इज द टाइम लाइन, दिस इज द ड्यू डेट फॉर मी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेट ना करें कि यार ये कोई टीचर आपको बताए कि असाइनमेंट की डेडलाइन क्या है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तक आपको कुछ गाइडेंस मिलती है। उसके बाद व्हेन यू एंटर द अदर लाइफ, चैलेंजेस और ज्यादा आ जाते हैं। सो यू हैव टू सेट योर ओन डेडलाइंस। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका वर्किंग स्टाइल आप खुद सेट करते हैं। दैट डिफाइंस योर होल पर्सनैलिटी। दैट डिफाइंस कि आप काम किस तरह करते हैं। तो डेडलाइंस इज वेरी वेरी एसेंशियल। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप उनसे पूछेंगे अपने आप से कि हाउ मच टाइम नीड्स टू बी डिवोटेड फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, आप हर हफ्ते डेडलाइंस, टास्क की डेडलाइंस सेट करेंगे और उनको कमिट करेंगे। यू मीट देम। वेट ना करें कि आपका जो सुपीरियर है, आपका जो मैनेजर है, आपका जो बॉस है, वो आपको हर बार पूछे, यार सिकंदर आपने ये कर लिया? आई बी लाइक, नहीं बस अभी कर रहा हूँ। सिकंदर आपने कर लिया? नहीं नहीं अभी कर रहा हूँ। सो दिस इज समथिंग दैट looks very bad on you. Learn to be self-driven. What do I mean by self-driven? Self-driven कि आप खुद प्रोएक्टिवली वो काम करें अपने लिए। फर्ज करें डेडलाइन आपकी परसों है, अपनी डेडलाइन आज सेट करें या कल सेट करें मैक्सिमम, ताकि यू यू बी डन बाय इट। व्हेन योर मैनेजर आस्क्स यू या आपके जो प्रोफेसर आपसे पूछेंगे कि आपने ये काम कर लिया, यू लाइक यप, दैट्स डन। इमेजिन कि ये किस तरह, हाउ विल योर मैनेजर फील व्हेन ही और शी नोज कि यार बगैर बताए, बगैर पुश किए आपने ये कर लिया। एक और चीज जो मैंने आई थिंक जो मुझे बहुत मुश्किल लगी थी, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट विद यू, मैं, अच्छा जरा ब्रीफली मैं आपको अपने करियर का बताऊं तो मैंने करियर में पहले मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो डिफेड फंडेड थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की फंडिंग थी, वहां से एक प्रोजेक्ट पे काम किया। उसके बाद मैं गया फेडरल गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में। तो वहाँ साल 1.5 साल मैंने काम किया विद द चीफ इकोनॉमिस्ट। तो मैं खुद इकोनॉमिस्ट हूँ। और गवर्नमेंट में जब मैंने तकरीबन
साल 1.5 साल ही काम किया, बट इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। वहां से जब मैं आया यहाँ प्राइवेट सेक्टर दोबारा, दैट्स अ लॉट ऑफ रीजंस कि गवर्नमेंट का काम मुझे वो सूट नहीं किया। खैर, मैं जब वापस आया प्राइवेट सेक्टर, आई गॉट इनटू अ लीडरशिप पोजीशन। उससे पहले मेरा जो पोजीशन था वो ये था कि बस देयर इज अ टीम दैट आई हैव टू वर्क विद द टीम। नाउ व्हेन आई केम बैक टू कराची, आई गॉट अ लीडरशिप पोजीशन वेयर आई हैव अ होल टीम विद मी। मेरा जो काम करने का आई थिंक जो वे ऑफ वर्क था वो ये था कि मैं खुद सारी चीजें करूं, परफेक्शनिस्ट अगर आप कहें। जाहिर सी बात है, काम किसी का परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर किसी के दिमाग में होता है कि यार ये मैं अच्छा कर रहा हूँ। मेरा काम था कि यार मैं अपने काम को सबसे अच्छा करूँ। मेरी अब टीम आ गई, 5-6 लोग आ गए। अब उनको मैं क्या काम दूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब उनको मैं बेसिक छोटे छोटे काम दे सकता हूँ, लेकिन जो बड़े काम है वो हमेशा मैं खुद अपने पास रख रहा था कि यार ये तो ठीक से करने हैं, ये तो 100% तरीके से करने हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सीखने में मिलता है कि यार डेलीगेटिंग टास्क इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मतलब आप खुद सारी चीजें कभी नहीं कर सकते। ये मुझे थोड़ा लेट समझ में आया, बट आई थिंक एट सर्टेन पॉइंट ऑफ माय करियर मैं उस जगह पे खड़ा था, सही जगह पे खड़ा था कि मुझे ये समझना पड़ा अ, कि जो फॉर एग्जाम्पल जो सेंटर की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी वो मैं कर लेता हूँ, की एसबीएल की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो मैं कर लूंगा। बट गोइंग टू द डे टू डे टास्क, ऑपरेशंस, प्रेजेंटेशंस बनाना, इस तरह की चीजें अब मुझे थोड़ा सा ये मुझे छोड़नी पड़ रही थी। एंड आई थिंक दिस वाज अ ब्लेसिंग दैट आई गॉट टू लर्न फ्रॉम केएसबीएल थ्रू द टीम एज वेल, कि डेलीगेशन किस तरह करनी है। आपको भी ये करनी पड़ेगी when you go in the work life, when you go further down your career इंशाल्लाह आपको ये लगेगा, आपको ये एहसास होगा कि यार टाइम लिमिटेड है। टाइम आपके पास नहीं है जितना आपके पास यूनिवर्सिटी में टाइम था, या जितना स्कूल में कॉलेजेस में आपके पास टाइम था उतना नहीं है। यहाँ तो फिलहाल यूनिवर्सिटी में आई एम श्योर कि आपके पास टाइम होगा कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपने असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं, और आप हर शाम अपने दोस्तों से मिलने भी चाह रहे हैं। फॉर मी, नो वे। मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं रोज दोस्तों से मिलने जाऊं। um, I'm not kidding, I swear मैं वीकेंड्स की प्लानिंग कर रहा होता हूँ कि यार इस वीकेंड इनसे मिलूंगा, उस वीकेंड उनसे मिलूंगा। सो लाइफ डज बिकम वेरी चैलेंजिंग, बट एट द सेम टाइम वेरी रिवॉर्डिंग। सो इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आपका जो कर्व है ये जाता रहेगा। शुरू में तो मुझे भी लग रहा था कि यार लोग कैसे अपने दोस्तों से नहीं मिलते, कितना मुश्किल होता है टाइम निकालना, लेकिन you have to manage your time effectively, and delegation is one key area where you can manage. आप दूसरों को डेलीगेट करें। मैं ये नहीं कह रहा अपना काम दूसरे के ऊपर फेंक दें, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो बेसिक काम है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से दूसरों को डेलीगेट करें। फिलहाल अभी तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिटी अगर कहीं नहीं है तो मुझे बता दीजिए प्लीज। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? यस, ओके, गुड गुड गुड। बस तरह लिखते जाऊं तो मुझे लगे कि यार ये ना हो मैं हैंग हो जाऊं कहीं पे और मैं खुद अब अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। मुझे बताते रहें कि यार यू आर हियर, आई एम नॉट अलोन। चलो दैट्स गुड। ठीक है, हो गया डेलीगेशन। आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन। नोट करते जाएं, ठीक है। आई कैन आई विल रैंडमली आस्क यू। पहला था प्लानिंग, इफेक्टिव प्लानिंग। सेकंड था गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड था अपने लिए डेडलाइन सेट करना। एंड देन इज डेलीगेटिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Delegating responsibilities, not your own responsibilities, taking responsibilities. Fifth, I think it's very important, equally important as the other four, is prioritizing your task. कौन से टास्क आप सबसे ऊपर रख रहे हैं, और कौन से टास्क आप थोड़े से नीचे रख रहे हैं या मीडियम पे रख रहे हैं। मैं आपको थोड़ी देर में वो अपना सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ जिसमें मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, अब यू कैन डेफिनेटली यूज इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। सो यू प्रायोरिटाइज टास्क एज पर देयर इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी के। यार ये टास्क कितना अर्जेंट है, मुझे कितनी जल्दी ये करना है। सो यू प्रायोरिटाइज दैट फॉर द डे और मे बी ड्यूरिंग द मंथ। कि यार एक महीने में फर्ज करें मुझे 2 आर्टिकल लिखने ही है, ठीक है। एक मुझे डॉन के लिए लिखना है, एक मुझे ट्रिब्यून के लिए लिखना है। तो दिस इज योर टास्क, बट इसमें अर्जेंसी आपकी कितनी है?
अर्जेंसी नहीं है आपकी, क्योंकि 1 महीने का आपने टाइम दिया हुआ है। बट इज इट इम्पोर्टेंट? सो यू प्रायोरिटाइज योर टास्क बेस्ड ऑन योर अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है? एक और जो चीज़ है वो है कि um, आप राइट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन अ राइट एक्टिविटी यूज़ करें। आप में से कितने लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं? आई एम श्योर सारे देखते होंगे। बल्कि मैं ये पूछूं कितने लोग नहीं देखते? नेटफ्लिक्स पे आई थिंक देयर इज दिस शो, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे ही है, टर्किश शो है, अर्तुगरुल, अपेरेंटली वेरी फेमस। कौन देख रहा है, कौन देख चुका है? आप अपने आप को अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं। समरा ने नहीं देखा, ठीक है। um, देख चुके माशाल्लाह तौबा। अर्तुगरुल सीजन 2 पे हैं सैरिश, ठीक है। तो मतलब ये देखें, अब देखें, आपके लिए आप देख सकते हैं, ठीक है? आपके लिए, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आपके पास टाइम है। फॉर मी इज नो वे ऑन अर्थ के मैं ये इस तरह देख सकूं। हो सकता है मैं एक दिन में एक एपिसोड देखूं, लेकिन मैं लिटरली मैं ये इसका मैं ट्रेलर भी नहीं देख रहा इसी वजह से। ये ना हो गलती से मैं इसमें लग जाऊं और ये मैं खत्म करने की कोशिश करूं, क्योंकि आई डोंट नो, अपेरेंटली बहुत सारे सीजन्स हैं, बहुत सारे इसके एपिसोड्स हैं, लाइक 400 के करीब एपिसोड्स हैं और एक एक घंटे के एपिसोड्स हैं। दैट मीन्स अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 400 के करीब आप घंटे इसमें दे रहे हैं। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टास्क कि अभी आपके पास टाइम कितना है। आप किसी और इम्पोर्टेंट चीज से टाइम निकाल के यहाँ तो नहीं दे रहे। यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव ऑफ दिस थिंग। अभी एट दिस स्टेज जब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहला जो आपका वो है प्रायोरिटी है, वो आपकी स्टडीज है, आपका एजुकेशन है। दैट शुड बी प्रायोरिटी नंबर 1। प्रायोरिटी नंबर 2 आप खुद डिसाइड करें। अब देखिए, मैंने आपको बताया डे टू डे टास्क। अब डे टू डे टास्क जो प्लानिंग होती है वो आपकी एवरी डे वाली हो रही होती है, एवरी वीक। देन यू हैव ब्रॉडर सेट्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कि यार एजुकेशन में मुझे फर्स्ट डिवीजन पे आना है या ये करना है मुझे, ठीक है। दैट इज योर ब्रॉडर सेट्स ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। उस हिसाब से यू प्रायोरिटाइज थिंग्स कि कहाँ पे मैं कितना टाइम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। सो डू नॉट ट्राई टू फोर्स योरसेल्फ कि यार मैं मुझे ये सब कुछ करना है। देखिए, वर्क डन एट अ रॉन्ग टाइम इज ऑफ नो यूज। मैं दोबारा ही रिपीट करता हूँ, वर्क डन एट अ रॉन्ग टाइम इज ऑफ नॉट मच ऑफ यूज। आप ये काम आपको आज करना था, अगर आप कल या परसों करें, इसकी यूज वो नहीं रहती, ठीक है। जैसे मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने फोन को कम टाइम दूं। आई हैव बीन ऑन माई फोन फॉर लाइक एवर, लेकिन ये है कि आजकल मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत कम मैं इसको टाइम दूं, कॉल्स को कम करूं या फेसबुक और ट्विटर को कम करूं। तो दिस इज माय प्रायोरिटी। अब इसमें मैंने एप्स में मैंने लिमिटेशंस लगाई हैं कि एक दिन में अगर मैं 10 मिनट से ज्यादा आऊंगा, इट गिव्स मी नोटिफिकेशन कि यार सिकंदर तुम 10 मिनट से ज्यादा इंस्टाग्राम तुमने यूज कर लिया, या 10 मिनट से ज्यादा तुम ट्विटर में यूज कर लिया, या 20 मिनट या आधा घंटा जो भी है। सो यू कैन सेट दीज थिंग्स ऑन योर प्रायोरिटी, सेटिंग द राइट टाइम फॉर द राइट एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी हर किसी के लिए चेंज हो सकती है एट अ डिफरेंट टाइम। आई कीप सेइंग बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, आपकी प्रायोरिटाइज आपकी एक्टिविटीज फिलहाल बहुत ही मुख्तलिफ होंगी एज कम्पेयर टू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। एंड आई एम श्योर आपकी भी आहिस्ता आहिस्ता व्हेन यू प्रोग्रेस, व्हेन यू गो टुवर्ड्स योर कॉर्पोरेट करियर, योर वेंचर कैपिटल, योर एंटरप्रेन्योरशिप करियर, जिस तरह की भी आपकी करियर गोल्स होंगे, these things will constantly evolve। लेकिन ये जो ब्रॉडर जो बड़े रूल्स हैं वो सेम रहते हैं। every thought leader, every successful person follows these things। let me show you a video ताकि आप लोगों का वो थोड़ा सा वो आ जाए। since we are talking about leadership, can you see the video?
Can you Yes. see my screen? Yes. Okay. Can you also hear it? No, not yet. Wait, wait. Abhi, okay. Can you hear it? Did you hear No. something? No, sir. Abhi bhi nahi? No. No. Nothing? Nothing. Okay, wait. Let me turn off my AirPods and see that तब आप कुछ सुने. Never my little bubbly-headed bubbly boo. Skip. अभी कुछ सुनाई दिया? Yes. Okay, Yes, sir. Yes. brilliant. So this is about leadership. मुझे याद है साउंड. जब मैंने लीडरशिप की बात कही कि किस तरह एज अ लीडर यू हैव टू प्रायोरिटाइज एंड वर्क एंड मेक श्योर कि आपकी टीम एक गोल पे एक उस पे चल रही है. व्हेन यू आर एट दैट स्टेज दैट मींस कि आप अकेले नहीं होंगे. देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट रिलाई ऑन योर एक्सपर्टीज ऑन योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. अच्छा ये चेक करें आप. We'll go out for pineapple, my little bubbly-headed bubbly boo. Skipper, look. Analysis. It looks like a small incandescent bulb, designed to indicate something out of the ordinary, like a malfunction. I find it pretty and somewhat hypnotic. That's your start. Right. Rico, manual. Problemo solved. Sir, we may be out of fuel. What makes you think that? We've lost engine one. Two is no longer on fire. Buckle up, boys. Don't look dull. This might get hairy. Attention! This is your captain speaking. I've got good news and bad news. The good news is we'll be landing immediately. Bad news is we're crash landing. Here comes the air travel. We know you have no choice whatsoever. But thanks again for choosing Air Penguin. I know you won't mind when I tell you. Come on, tell me anything. Tell me what. I broke your iPod. What? This is a wall. It made me mad. I'm sorry. I'm gonna kill you. This accident. Had your fun. Hold on. You down. Just what? Psychic kiss news is. उसको तो याद किया उन्होंने. बस हम बता के लिए Atlantic procedure. Flaps up. Only 2 passengers unaccounted for, Skipper. That's a number I can live. Can you hear me? Yes, sir. Okay. तो ये जो वीडियो थी, obviously it's a comedy, it's a funny video, it's an animation. लेकिन the idea to show you is कि when the leader does not plan effectively, this is bound to happen. There is going to be a lot of crashing, not crash landing, but a lot of crashing. बहुत सारे leaders होते हैं, उनका जो main task होता है वो planning plus crisis control होता है. तो क्राइसिस कंट्रोल एज अ बैकअप है, बट क्राइसिस से पहले आपको प्लान करना पड़ता है कि यार ये मैं करूंगा, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको मैंने इतना टाइम दिया हुआ है, इसको मेरी टीम इतना टाइम देगी, मेरी डेलीगेशन जो मैं डेलीगेट करूंगा जिसको, उनको इतना टाइम देना है टिल इट इज एक्चुअली रिजॉल्व्ड.
Are there any comments or so on so far कि हम क्या बातें कर रहे हैं? Any questions? Okay, I'm assuming things are clear so far. ठीक है. Let's go next. हम टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि टेक्निक्स क्या क्या है. लेट्स गो टू द बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट कि यार ठीक है कर लिया, इसके वाकई में बेनिफिट्स हैं नहीं है. देखिए सबसे पहला तो ये है कि इट शेप्स योर पर्सनालिटी इन अ मोर बेटर वे. बाकियों को फायदा पहुंचे ही पहुंचे, आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है. um, आपको अगर मैं एक रिलीजियस एग्जांपल दूं, जितनी भी चीजें हर रिलीजन में, होती हैं, देयर इज अ रीजन फॉर इट. हर रिलीजन की बात कर रहा हूँ, हिंदुज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, कि अगर ये करेंगे तो क्यों करेंगे. जब प्रेयर्स की बात आती है, जो 5 वक्त की नमाज की बात आती है, तो क्यों क्यों करेंगे आप ये. देखिए जो मेन कॉन्सेप्ट है नमाज का, ऑब्वियसली इट इज टू कनेक्ट विद द हायर, जो आपकी वो है क्रिएटर है पूरे दुनिया की, पूरे कायनात की जो क्रिएटर है उनसे कनेक्ट करना. बट एट द सेम टाइम it is also your own time management. It teaches you time management throughout your life. कि आप हर दिन, आपको पता है कि आपको सुबह इतने बजे उठना है, दोपहर को इतने बजे वो करना है, असर, मगरिब, इशा. तो दिस इज हाउ आवर सोसाइटी इज शेप्ड एज वेल. ये एक एग्जांपल है आपकी टाइम मैनेजमेंट की, जो आप अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं. बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू डू कॉन्शियसली, जो आप सोच समझ के आपको ये करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो पर्सनैलिटी है ओवरऑल शेप हो. यहाँ से भी आपकी पर्सनैलिटी, नमाज से भी जो आप टाइम देते हैं, जो प्लान करते हैं, दिस ऑल्सो मेक्स यू टाइम सेंसिटिव. आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन इट इज मेकिंग यू टाइम सेंसिटिव, इट इज मेकिंग यू मोर punctual and disciplined. Let me share my screen to you for another thing. Just a sec, yeah. Can you all see my screen? Yes. Okay. It's a board called Trello that I use. Has anyone heard of Trello? Anyone? No, sir. Okay. किसी एक ने सुना है? वो बता दे. Okay. No problem. मैंने भी एक board create किया था just for you guys, just to show you here. Trello का. ठीक है. So अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी डे टू डे टास्क की, कि एक टू डू है, एक डूइंग है, एक डन है. ठीक है. अब Trello is a very good software to effectively manage your time. आपकी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट से लेकर आपका जो वर्क करियर है, एवरीथिंग यू कैन मैनेज इजिली ऑन दिस बोर्ड फॉर फ्री. हम इसमें फर्क करें, मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की. ठीक है. कॉन्फ्रेंस है फ्यूचर समिट. ईमेल द कनेक्शंस फ्रॉम फ्यूचर समिट. ठीक है. जिनसे मैंने बात की है, जो मेरे कनेक्शंस बने हैं वहां पे, उनको एक ईमेल करनी है. दिस इज माय टू डू. ठीक है. ईमेल विद द फ्यूचर कॉल टू एक्शन. अब मैं उनको बताऊंगा कि यार इट वाज वंडरफुल मीटिंग यू, और ये हम कोलैबोरेशन आगे कर सकते हैं. दैट्स माय कॉल टू एक्शन. Add them on LinkedIn. Once they reply, then you can add them on LinkedIn. ठीक है. So these are the checklists that you make. और जैसे ये ग्रीन होता है, आप दोबारा मेरे Trello पे जाए. This is all green. Now I'm gonna put it on done list. जब मैं कर रहा होता हूँ, I'm gonna put it on doing list. That means 2 टास्क मेरे हो गए हैं, एक मेरा टास्क अभी तक रहता है. ठीक है. Trello is an amazing platform in that sense. You can play along a lot on this. Not just this,
You can also do, for example, आज जो हमारी एक country strategy dialogue है जो प्राइम मिनिस्टर के साथ असद उमर के साथ है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है. अब इसमें मैंने लेबल लगा दिया है. फॉर एग्जांपल, रेड लेबल इज प्रायोरिटी, this purple is World Economic Forum, yellow is sort of an average task, okay task, इसमें इतनी ज़्यादा मुझे effort नहीं करनी पड़ेगी. These are the connections lead that I have to speak, international connections lead, local connections lead, वो सारी चीज़ें. So same for this one. आपकी meetings यहाँ पे आ सकती हैं. अब जैसे meeting with Johan है at 4:30 p.m. ठीक है. क्या क्या इसके labels हैं? It's okay. It's not on high on my priority. It's okay on my priority. It's a connection from World Economic Forum. ठीक है. क्या मुझे डिस्कस करना है? Go through the CST first. Discuss about the work as well as the CST. ठीक है. यहाँ पे you can write more comments. Discussion on Pakistan's economic outlook. ठीक है, ये आपने लिख दिया. So this ये जो point है, ये आपकी टीम भी देख सकते हैं. So for example, अगर आपका कोई assignment है, it's an assignment together. क्या कहते हैं? It's an assignment together on with other students. ठीक है, बाकी student के साथ आप कर रही है. You can add them as team members. उनकी email, उनकी Trello का email डाल दो. For example, Aisha XYZ. ठीक है, ठीक है, इनको आपने ऐड कर लिया. Then they can work together on your Trello together. ठीक है, इसमें you can also attach. You attach from Google Drive. You attach from Box, OneDrive, Dropbox, everything. You can have as many boards as possible. This is just one board that I've shown you. जो हम Davos 2020 का वो था for our World Economic Forum. इसमें ये for example हमने अपने connections अलग-अलग कर लिए थे कि कौन-कौन से किसके connections हैं. XYZ. So these are amazing tools that you can explore through Trello. And Trello is just one software. यहाँ पे बहुत सारी और इस तरह के softwares हैं, project management tools हैं, जो आपको throughout the time they are helpful for you. ठीक है? For example, ये Singularity University is a platform that we want to get the membership of. It's an international platform. It's a technology AI related का platform है जो हमें चाहिए कि यार दाऊद ग्रुप्स को हमें इनकी membership चाहिए. ठीक है. अब इसमें मैंने checklist डाल दिया है. Finalize the membership fees, rerun with the team and external help, and finally pay. जब मैंने pay कर लिया, that means कि सब कुछ हो गया. अब इसमें मैं एक due date set करता हूँ. ठीक है. Due date है मेरा due date है मेरा 31st of December. कितने बजे? Any time, does not matter time to me. मुझे फाइनल एक वो बार मुझे वो आएगा, क्या कहते हैं, रिमाइंडर. लास्ट रिमाइंडर कब आएगा? 2 दिन बिफोर माय रिमाइंडर. ठीक है. अब मेरा ड्यू डेट आ गया. ड्यू डेट को जब मैं ये करता हूँ, दैट मीन्स कंप्लीट. तो जो ये कंप्लीट का ग्रीन कलर का बॉक्स आता है, दिस गिव्स यू इंटरनल सेटिस्फैक्शन एज वेल कि यार ये आपने टाइम से पहले कर लिया. दिस इज कंप्लीट. सो ट्राई टू अडॉप्ट दीज हैबिट्स फ्रॉम नाउ ऑन, ताकि जब आप फॉर्मली एक वर्क एनवायरनमेंट में जाएंगे, you are not just a student who has done regular things. You are a student जो thinking outside the box कर रहा है. मतलब आप में से बहुत, मतलब जैसे मैं लोगों को अगर मैं हायर करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ? सब ऑब्वियसली सीवी तो मैं देखता ही हूँ, लेकिन सीवी के अलावा मैं ये देखता हूँ कि क्या इसने कुछ और किया है, क्या इसके पास कुछ और स्किल्स हैं, या कुछ और पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो मुझे मेरे काम में या मेरे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगी. दैट इज अ वेरी प्लस पॉइंट. सो दिस यू कैन एक्चुअली ऐड इन योर रेज्यूमे कि यार मैं Trello यूज करता हूँ या करती हूँ. Trello is a software that gives me that helps me in planning my day or planning my month or planning effectively. It's a time management tool for me. This is one of the time management tools for me. So अगर आप ये लिखेंगे और ये ऐड करेंगे, रिक्रूटर को या जो आगे जिनके लिए आप अप्लाई करेंगे, उनको लगेगा कि यार दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये पहले मैंने नहीं देखा. और दैट मीन्स कि ये लड़का या जो लड़की है जो अप्लाई कर रही है, ये मतलब इसकी थॉट प्रोसेसिंग इज स्लाइटली डिफरेंट देन द रेस्ट. आपको क्राउड से ये अलग कर देगा. ठीक है. You can have the attachments here, which is very easy. You can just click on the attachments that take you exactly there. You can do a lot of things.
with Trello. Literally, it's a gold mine if you are someone who likes to be organized. और सबसे I think जो most important tool जो time management का है, जो एक चीज आप I think if you have to pick one thing today, that would be your planning, how organized you are. जितना ज्यादा आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे उतना ज्यादा आपकी चीजें आप आराम से कर सकते हैं. लेट मी शेयर अनदर फाइल विद यू जो हम अभी मैं काम कर रहा था उस पे, टू टेल यू हाउ द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम वर्क्स और क्यों ऑर्गेनाइज्ड होना जरूरी है. उसके बिना ऐसा क्या. Can you see my screen? Can you see my screen? Yes. Okay. इसमें देखिए this whole thing जो आप ये ट्रांसफॉर्मेशनल मैप देख रहे हैं, this is what we call transformational map. अब इसमें पहले हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इवेंट्स थे और बाकी चीज के इवेंट्स थे. देन वी रियलाइज कि यार इसको और हम ऑर्गेनाइज तरीके से किस तरह कर सकते हैं. तो फॉर इंस्टेंस इफ आई क्लिक ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मुझे बताए कि कौन से इवेंट्स कौन सी चीजें वेब से रिलेटेड है, बाकियों को हटा के. So these are some of the ways how you can organize your work effectively and efficiently. I would love to hear कि आप लोग किस तरह कर रहे होते हैं. Is there any example from your work that you think is different, बाकियों से अलग होगा ये जिस तरह आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं? क्या एक एग्जांपल आप दे सकते हैं कोई, या कोई भी एग्जांपल? क्या असाइनमेंट आपका डिले हो रहा था, आपने कैसे वो कर लिया, या आपका पेपर पे कुछ वो मतलब आपने डिवाइड कर लिए सब्जेक्ट्स, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, एनी एग्जांपल, ताकि मुझे आपकी थॉट प्रोसेस पता चले ना कि आप एग्जैक्टली जो जिनके साथ मैं अभी बात कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा है. एनी? जी तुबा, आप अनम्यूट करके बता दें. सर मैं ना कॉपी पे लिखती थी कि जो जो मेरा स्केड्यूल होता था ना, जब मेरे स्कूल के पेपर होते थे, टेस्ट वगैरह होते थे, मैं सब्जेक्ट वाइज या मैं टॉपिक वाइज डिवाइड कर लेती थी कि मैंने इतने घंटे में या इतने मिनट्स में मैंने इसको कंप्लीट कर लेना है हर हाल में. मैं उसी के हिसाब से ना, मतलब मेरा 1 घंटे में एक सब्जेक्ट फिर हो जाता था, या एक टॉपिक हो जाता था. अगर मेरा पेपर होता था ना, तो मैं 1 यूनिट या 2 यूनिट में 1-2 घंटे में कर लेती थी. इस तरह से मेरा पूरा 1 दिन में कवर हो जाता था. It's a very good example of how कि किस तरह आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आप अपनी चीज़ों को effectively मैनेज कर रहे थे. आप देखिए, आपको कैटेगरीज बनानी है when you're planning something on time management. सबसे पहले तो आप कैटेगरीज बनाएंगे कि किस कैटेगरी को मैं कितना टाइम देना चाहूँगी प्रायोरिटी के हिसाब से. कैटेगरीज में आपके सब्जेक्ट वाइज आ जाते हैं, कैटेगरीज में आपके डेज वाइज आ जाते हैं, वीक्स वाइज आ जाते हैं, या मंथ वाइज कि यार मेरे एग्जाम 3 महीने बाद हैं, तो हर हफ्ते में मैं 5 घंटे या 6 घंटे मुझे इंग्लिश को देने हैं. इंग्लिश में क्या देने हैं, यू कैन फर्दर सेग्रीगेट, यू कैन फर्दर कैटेगराइज दैम. और कोई एग्जांपल, नॉट जस्ट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, कहीं और से भी एग्जांपल मुझे दें.
सोचें सोचें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जैसे मुझे कहीं जाना होता था अम्मी वगैरह के साथ, तो मैं यूनिवर्सिटी में जितने भी असाइनमेंट्स वगैरह होते थे वो लाइब्रेरी में बैठ के कंप्लीट कर लिया करती थी। तो ताकि जब मैं घर आऊँ तो अम्मी भी नाराज़ ना हो और काम भी कंप्लीट हो जाया करे। सो दैट वाज़ माय That's a टाइम very good one. मैनेजमेंट। थैंक यू। That's a very, very, very good example, Muniba. और कोई? लेकिन these are very, very good examples, and I want to learn more from you guys as well. मैं बार बार यही दोहरा रहा हूँ कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। सबका एक्सपीरियंस अलग है, बट आई वांट टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एज वेल कि आप क्या कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट। मुझे किस तरह वो हेल्प करेगा। देखिए, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे आऊँ कि फॉर समवन जो टाइम को सही से मैनेज कर सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उनका ये है कि वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने शुरू में कहा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका क्या मतलब है कि आप की एक डायरी है और डायरी में आप क्या लिखते हैं दैट शोज योर ऑर्गेनाइजेशन। मैं डायरी में हर रफ काम लिखता हूँ या हर मैं इंपॉर्टेंट चीज लिखता हूँ, और मैं इनको अलग कैसे करूंगा, इंपॉर्टेंट चीज को मैं बाकी काम से अलग कैसे करूंगा। फर्ज करें मुझे अभी मेरा सुपरवाइजर जो है वो पूछता है कि उस दिन आपने मीटिंग की XYZ से, क्या बातें की आपने, मतलब मेन टेक अवेज क्या थे आपकी मीटिंग से। अब मैं वेट करूंगा, मैं डायरी ढूंढता रहूंगा, पता नहीं चलेगा कि मैं कौन सी मीटिंग की बात कर रहा हूँ। हाउ डू यू कीप इट ऑर्गेनाइज्ड? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग डेट्स पे ऑर्गेनाइज करें, ऊपर डेट लिख दें, ताकि जब मीटिंग की बात आए मैं डायरेक्ट रेफर करूं, यार अच्छा वो 24 तारीख को थी, सही सही सही, वो 2 तारीख को थी, सही सही, सो आई स्ट्रेट गो फॉर दैट। हो सकता है कुछ लोग, जैसे मैं करता हूँ, आई डू नॉट राइट एनीथिंग इररेलेवेंट इन दिस। मैं अगर एक मीटिंग में पूरा बैठा हूँ 2 घंटे की, हो सकता है कि मैंने ये आधा पैराग्राफ लिखा है, ये 2 घंटे की मीटिंग है। दिस फॉर मी कीप्स मी ऑर्गेनाइज कि यार जो मेरे मेन टेक अवेज हैं वो ये हैं। एक और तरीका जो मैं यूज करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी टाइम मैनेजमेंट के लिए, वो ये है कि अगर मैं आज एक काम करूं तो आज रात को आई राइट माई नोट्स, या आज रात को जो मेरा कॉल टू एक्शन है वो मैं आज रात को ही करूं, या तो मैं अपने आप को एक वॉइस नोट भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे कि यार इस मीटिंग में दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, या इस चीज में दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, दीज आर द की टेक अवेज, की पॉइंट्स ऑफ दिस होल मीटिंग। इस तरह मुझे ये जल्दी याद रहता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड, हमारा जो दिमाग है वो उस टाइम तक बहुत फ्रेश होता है, लेकिन जो 24 या 36 घंटे गुजर जाते हैं आपकी मेमोरी ब्लर होना स्टार्ट करती है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट हेल्प मी ऑर्गेनाइज माय लाइफ, ऑर्गेनाइज माय वर्क। एक और तरीका ये है कि यू डोंट हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेपर्स। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि हो सकता है आपकी डायरी पूरी भरी हो, क्या फायदा, ये आपको सिर्फ नुकसान देगी। आप वो सारी चीजें फेंक दें जो आपको लगता है विच आर नॉट नीडेड फॉर यू। सारे पेपर जमा ना करें, इनको फेंक दिया करें। अगर जो लगता है आपको कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, डू नॉट होल्ड देम ऑन टू, जस्ट थ्रो देम अवे, और डोंट राइट ऑन देम इन द फर्स्ट प्लेस। पुट योर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन अ फोल्डर। आप मुझे बताएं कितने कितने लोगों ने एक फोल्डर बनाया हुआ है आप में से, जिनके सारे यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो वहां पे हैं? कितने लोगों ने बनाया? और कितने लोगों का CNIC की जो कॉपी है वो उनके पास अभी भी पड़ी हुई है एग्जैक्टली राइट नाउ, अगर जो मैं अभी पूछूं? वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। आई थिंक सबने बनाई है, दैट्स अ वेरी वेरी गुड साइन, क्योंकि दिस शोज दैट यू आर ऑर्गेनाइज्ड। आप सबने आई थिंक बनाया हुआ है फोल्डर, दैट्स वेरी वेरी गुड टू नो। लेकिन आप सबने आई होप कि फोल्डर में रेलेवेंट चीजें ही रखी हुई हैं, क्योंकि आप खुद सोचें कि
आपके जो यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली आपको उनकी नीड होती रहेगी. So that shows that your mind, even if not thinking according to those lines of time management, but you are working on that already. तो आप खुद सोचें, अगर आप कॉन्शियस एफर्ट करें टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से यूज करने के लिए, आप बहुत कुछ और कर सकते हैं. मैंने बनाया हुआ है अपना फोल्डर, दैट्स वेरी गुड. I have a folder as well, and from very long time, and I'm sure कि आप लोगों का भी वही होगा. उसमें मैंने क्या क्या लिखे, मैंने क्या क्या दिया. So I have my O levels. O levels के बाद O levels की इक्विवेलेंसी, फिर है A levels, A levels की इक्विवेलेंसी, फिर है बैचलर्स, मार्कशीट और डिग्री की कलर्ड कॉपी, क्योंकि डिग्री उसमें फिट नहीं होती फोल्डर में. फिर है मास्टर्स, ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर्स की डिग्री की कलर्ड कॉपी, पासपोर्ट की फ्रंट पेज की कलर कॉपी और CNIC कलर कॉपी. दिस इज माय फोल्डर. ये फोल्डर मैं साइड पे मैंने रख दिया है, क्योंकि आई नो कि जब मुझे इसकी नीड होगी किसी भी चीज की, मुझे लगता है एजुकेशन रिलेटेड, आई गो देयर. सो ये किस चीज की एग्जांपल है, ये मैंने क्या कैटेगराइज, मैंने क्या किया है इसको. So the categorization here is education and essentials. So this is one category for me, education. एक और कैटेगरी है वर्क. ठीक है, अब वर्क के लिए मेरे पास अलग फोल्डर है, मेरे पास ट्रेलो है, मेरे पास अलग चीजें हैं. सो ये जो फोल्डर है, ये सिर्फ मेरा फिजिकल फोल्डर नहीं है. आई एक्चुअली हैव अ फोल्डर ऑनलाइन, आपको दिखाता हूँ. ठीक है, दिस इज यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स. अब यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स में मेरा यूनिवर्सिटी आ जाता है. ठीक है, मेरा ONA लेवल्स आ जाता है, और मेरे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स वगैरह ये वो चीजें आ जाती हैं, लोकल सर्टिफिकेट जो भी है. और ये मेरे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको मैंने जिप फोल्डर में डाला हुआ है ताकि ये ज्यादा स्पेस ना ले मेरे ड्राइव में. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द वेज दैट यू कैन कीप योर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड. और ऑर्गेनाइज करने का दूसरा वर्ड इफ आई यूज, कि ये आपकी लाइफ को सिंपल बना देगा. बस ऑर्गेनाइज करने का, व्हाई आर यू इन दिस सेशन, the best answer would be I want a simple life, I want an organized life, I want to see कि आप किस तरह कर रहे हैं या corporate world में किस तरह होता है. That could be one of the answers. Put important documents in a folder. ठीक है, keep the files in the respective drawers. उनको लेबल कर दो टॉप पे. फर्ज करें आपका जो साइड टेबल है या आपके जो अलमारी में वो ड्रॉर है, उन पे आपने हर जगह एक लेबल कर दिया, एजुकेशन, वर्क, यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स, उनमें डाल दिया. सो कीप सेपरेट ड्रॉर्स एज वेल व्हेन यू गो आउट टू वर्क. इट सेव्स टाइम कि आप ढूंढते फिरेंगे नहीं. जब आपको जो चीज चाहिए होगी, यू जस्ट ओपन द ड्रॉर, यू फाइंड इट देयर. एक और आई थिंक मैं एलिमेंट आपको बताऊं कि जो सक्सेसफुल मैनेजर्स का वो होता है, who are very good in managing time, they don't misuse time. इसका क्या मतलब है? जैसे आप में से अभी एक एग्जांपल आई थी कि असाइनमेंट्स को मैंने कॉपी में लिखा था, एंड देन मैंने उस हिसाब से आई फिनिश माय सब्जेक्ट्स. सो यू कंसंट्रेट एंड यू फिनिश योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम. डोंट वेट टिल द लास्ट मोमेंट. बहुत सारे लोग होते हैं, मैं अपनी एजुकेशन लाइफ में भी आई थिंक थोड़ा बहुत उस तरह का था, कि जो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ लास्ट मिनट में करता हूँ और मैं जबरदस्त करता हूँ. तुम पढ़ते रहो, खैर है, कोई मसला नहीं है, मैं तो लास्ट मिनट वाला हूँ, मैं तो आखिरी 3 दिन टिका के पढ़ूंगा और मैं ए लाऊंगा. देखिए, दिस माइट वर्क एट सम स्टेज, बट दिस इज बिल्डिंग इन योर पर्सनालिटी. आप ना चाहते हुए भी आपकी पर्सनालिटी में बिल्ट अप हो रहा है जब आप ये करेंगे. एंड दैट विल नॉट बी अ वेरी गुड थिंग व्हेन यू कम फॉर कॉर्पोरेट. क्योंकि स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ना, अपने असाइनमेंट्स करना इज वेरी डिफरेंट. जब आप प्रॉपर लाइफ में आएंगे आफ्टर यूनिवर्सिटी, that will be very challenging and very different.
तो उसके लिए आपको अभी से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपकी पर्सनैलिटी को उस तरह डेवलप करने की कि आप अम, क्या कहते हैं, आप ताकि अटके नहीं वहां पे इन द रियल लाइफ. सो यू वर्क राइट नाउ इन वेज के यू डू नॉट मिस यूज टाइम. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन? कि इवन दो आप कर सकते हैं, एक दिन में भी आप पढ़ सकते हैं, 3 दिन में भी आप पढ़ सकते हैं, आप हो सकता है पास हो जाए, लेकिन ये जो आपकी पर्सनैलिटी पे जो एलिमेंट आ रहा है, दिस विल बी हार्डर टू रिमूव इन फ्यूचर. तो इसलिए कोशिश यही करें कि अभी से ही अपने आप को ऑर्गेनाइज तरीके से टाइम अपने अफेक्टिवली मैनेज करें, ताकि अभी से दिस इज योर प्रैक्टिस फॉर द लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ. ठीक है, डू नॉट मिस यूज टाइम. Do not waste your time by wandering around or gossiping around. Remember कि आपकी जो organization है, जब आप काम करेंगे, they are not paying you to watch Netflix or computer games. They are paying you to get the work done. So अभी से कोशिश करें कि इस हैबिट को अपने अंदर ले आएं कि आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपको पे कर रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, इतनी मेहनत करके वो आपको इस लेवल तक लेकर आए हैं, you pay them back by being mindful of the time. कि यार इन्होंने अपनी टाइम और एनर्जी मुझ पे खर्च की है, मुझ पे डाल रहे हैं, इतनी एक्सपेक्टेशंस डाल रहे हैं, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनको रीपे करूं थ्रू माय ओन एफर्ट्स. पहले अपना काम कंप्लीट करें, जो भी आपके टास्क हैं इफेक्टिवली, उसके बाद आपको जो भी करना है करें. देन देखिए उस टाइम जब आपने ये कर लिया ना, फर्ज करें आपके 3-4 टास्क थे एक दिन के, ठीक है, परसों के 3-4 टास्क मैंने अपने कर लिए, उसके बाद मैं जो भी करूंगा मैं गिल्टी फील नहीं करूंगा कि यार वो भी तो रहता है, असाइनमेंट भी तो रहता है और ये भी तो है. तो वंस यू आर डन विद दीज, आप गिल्टी फील नहीं करेंगे. सो ट्राई टू मैनेज योर टाइम इन अ वे कि यू डू नॉट मिस यूज इट. ठीक है, so these are the key areas of a good manager, of a good leader who organize their time. सबसे पहला क्या था, वो organized है. सेकंड है, वो misuse नहीं करेगा टाइम को. थर्ड है, be focused. Keep writing them down. I hope you're writing them down. These are very important things that would help you throughout your career. क्योंकि मैं भी 4-5 साल से I'm working in different areas, and all this has been developed through experiences, learning, errors. और सबसे जो आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि that you are um, making the best of the digital age. हमारा टाइम, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे टाइम पे I'm not a दादा, लेकिन ये है कि जो कुछ साल पहले का टाइम था, वहाँ पे इतना ज़्यादा डिजिटल वो नहीं था. अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है. मैं इतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन ये है कि उस टाइम डिजिटल इतना एक्सप्लोर हम नहीं कर पाते थे. अब आपको खासकर जो कोविड के बाद तो और भी ज़्यादा हो गया है. तो मेक द बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ डिजिटलाइजेशन. आपके पास ये चीज़ें हैं, आप घर बैठ के, मैं आपको बता रहा हूँ, आप घर बैठ के सुन भी रहे. पहले कहाँ पे ये था. तो बी फोकस्ड. अभी से अपना आप डेवलप करें हैबिट ऑफ प्लानर्स यूज करने का, ऑर्गेनाइजर यूज करने का, टेबल कैलेंडर्स यूज करने का फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट. किसके पास ऑर्गेनाइज प्लानर है, ईयरली प्लानर? किसी ने खरीदा था 2000 किसमें 2020 के शुरू में किसी ने कोई प्लानर खरीदा था? पता है मजे की बात है, आई डोंट नो हाउ, लेकिन मैं कितनी जगहों पे गया हूँ जनवरी में, इवन दिसंबर में लास्ट ईयर, कि मुझे प्लानर मिले. प्लानर ही नहीं मिल रहे पाकिस्तान में. लिटरली मैं उर्दू बाजार भी गया था प्लानर ढूंढने, मुझे बहुत ही बेसिक सा प्लानर मिला था, नहीं मिला. मतलब मैं लिबर्टी गया और लिबर्टी में मुझे प्लानर नहीं मिल रहा. कह रहे सर डिमांड नहीं है. और आई वाज वेरी शॉक्ड, क्योंकि दिस इज समथिंग that I have been buying every year, और this is something has been helping me a lot कि आप हर दिन का प्लान कर रहे हैं उस प्लानर के अंदर. So I would really encourage you. तो it shows हमारी माशाल्लाह से कौमी प्लान नहीं कर रही होती पाकिस्तान में, अल्लाह मालिक है, चल रहा है. लेकिन ये है कि आप अपने अंदर ये हैबिट लेकर आए कि प्लान करते रहें. अभी नवंबर है, दिसंबर को अपने लिए नए साल के लिए प्लानर एक जरूर लीजिएगा. डायरी फॉर द होल ईयर, जिसमें सारे 365 दिन है विद द डेज एंड स्टफ, उसके हिसाब से प्लान करें. It's much easier to keep yourself organized when you're doing the planning.
ठीक है? be be focused. Set reminders on your phones and computers. कितने लोग अपने कंप्यूटर पे स्टिकी नोट्स यूज करते हैं? Sticky notes are very Yes. good reminders. Very good. I use a lot of sticky notes. Sticky notes are good reminders. Sticky notes के अलावा आपके फोन पे रिमाइंडर आपके अच्छे हो सकते हैं. आपके कैलेंडर पे आपके रिमाइंडर हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं. सो ट्राई टू यूज. देखिए हम कितना टाइम हम फोन पे हैं पूरे दिन. आई थिंक अगर 24 घंटे में अगर हम 14 घंटे जाग रहे हैं, 14 घंटे मैं जाग रहा हूँ, आई थिंक आप लोग तो 18-20 घंटे जाग रहे होते हैं. 14 घंटे अगर हम जाग रहे हैं तो 14 घंटे में आई थिंक आराम से 6 घंटे तो हमारे फोन पे लगते हैं. बार बार हमारा फोन हमारे हाथ में है. बाहर जाओ भी हमारे हाथ में है, ड्राइव करते वक्त भी कभी कभी देख रहे होते हैं. तो यूज दैट टेक्नोलॉजी फॉर अ वेरी गुड एफर्ट एज वेल, फॉर ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ. ठीक है? बी फोकस्ड, दैट्स वन ऑफ द थिंग्स. एक और है एलिमेंट है फॉर अ गुड leader, for a good manager who manages their time effectively, is sort of when you're going, for example, in a meeting or something, you plan beforehand. So मैं ये नहीं कह रहा पूरा दिन का आपको constantly plan कर रहा होता है. कभी कभी ये होता है कि individual task को आपको शुरू में बैठ के plan करना पड़ता है. जैसे फर्ज करें ये मेरा एक सेशन था सर्कल के साथ टाइम मैनेजमेंट पे. अब मैं ये तो नहीं कहूंगा ना कि यार मैं आके वीडियो पे देख लेता हूँ, जो भी होगा चल जाएगा. आई हैव टू प्लान. आई हैव टू प्लान कि यार पहले आधे घंटे में मुझे क्या बोलना है, दूसरे आधे घंटे में मुझे किस चीज पे फोकस करना है, तीसरे आधे घंटे में मुझे किस चीज पे फोकस करना है, चौथे आधे घंटे में मुझे क्या करना होगा, किस तरह इंगेज करना होगा लोगों को, किस तरह मेक श्योर करना होगा कि आप लोग बोर ना हो, आप लोग ये ना कहें यार क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. सो दिस ऑल comes down to your time management and your planning. कि यार आप किस तरह अपने डे टू डे टास्क को प्लान कर रहे हो. हाउ यू मेक श्योर कि द नेक्स्ट पर्सन इवन विदाउट रियलाइजिंग इट सॉर्ट ऑफ अप्रिशिएट्स कि यार चलो इसने एफर्ट की है इस चीज के लिए. दिस इज सॉर्ट ऑफ अ लर्निंग फॉर लाइफ. आप कहीं पे भी जाएंगे. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आई एम नॉट गोना कॉल अ नेम, ठीक है, बट आई एम गोना गिव यू एन एग्जांपल. हमारा जो मेरी पहली जॉब थी, इट वाज विद डिफरेंट फंडेड कैंपेन. उसके लिए मुझे जो पहला इंटरव्यू था वो फोन पे था. सेकंड इंटरव्यू वाज ऑन स्काइप. थर्ड इंटरव्यू, सो द ऑर्गेनाइजेशन जो जिसके लिए मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ उनका हेड ऑफिस है इस्लामाबाद, लेकिन हायर कर रहे थे कराची के लिए. सो उन्होंने मुझे टिकट दी इस्लामाबाद की कि आपका थर्ड इंटरव्यू आप इस्लामाबाद में होगा. हम 3 लोग गए थे कराची से इस्लामाबाद उस पोस्ट के लिए. तो हमारा जो थर्ड इंटरव्यू था, वन ऑफ द गर्ल्स जो मेरे साथ कराची से गई थी, तो वो गई इंटरव्यू देने और वो वापस आई. तो मैंने कहा कैसा हुआ इंटरव्यू? तो कहती बहुत बुरा हुआ मेरे ख्याल से. तो मैंने कहा क्यों? कहती उन्होंने मुझे पूछा है कि व्हाट डू वी डू. तो मैं ब्लैंक हो गई हूँ. मैंने कहा आई एम नॉट श्योर. तो दिस दिस शोज कि यार आपने इतनी सी प्लानिंग नहीं की कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के पास उसके बारे में पढ़ें जिन्होंने आपको टिकट दिया, इस्लामाबाद बुलाया. When you're going for a job, this is the first planning you do when you're applying for any position in future. This is your very basic planning जो आप करते हो कि यार पहले तो मैं फर्स्ट करो आप सर्कल में अप्लाई कर रहे हो, आप पढ़ोगे यार सर्कल करता क्या है. This is the very basic. When the team in circle asks you, what do you think of us? What do you think we do? सबसे पहले तो आप इस चीज को वो करेंगे. So make sure कि इस तरह की भी आपकी जो एक्टिविटीज हैं उनको भी प्लान करें. It's not about your only कि आपने गोल सेट किए कि मुझे इन पेपर्स में इन चीजों में मुझे पास होना है. It's about your day to day planning at the same time as well. Are there any questions? या कोई lack of clarity? अभी हमारा जो टाइम है, it's a very different time. We are working from home, a lot of us. तो हमारा तो हमारा जो DH में दाऊद में वो चल रहा है. It's के 50% of the staff comes at one day for a few days and then 50% of the staff comes next.
मेरा जो वर्किंग डेज हैं जो ऑफिस में है वो है मंडे ट्यूसडे फॉर 1 वीक एंड देन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे द नेक्स्ट वीक. द रेस्ट ऑफ द डे आई एम वर्किंग फ्रॉम होम. अब वर्किंग फ्रॉम होम या स्टडीइंग फ्रॉम होम is very different than going to university या going to work. I'm sure you all agree. क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे वो environment बना होता है, वो classes हो रही होती हैं, तो you are very fresh, you are trying to make notes, you are making the best of it. लेकिन कभी कभी घर पे, जैसे अभी मैं आपको कह रहा था वीडियो दिखाओ, तो I'm sure बहुत सारे लोग तो बेड पे लेटे होंगे, तो लाइक यार कहाँ कौन वीडियो दिखाए, कौन अपनी बगैर मेकअप की शक्ल दिखाए. तो these are very different than going to your university. वहाँ पे you're fresh, you're ready, you're making notes and stuff. तो यहाँ पे आप कैसे मैनेज करेंगे अपना टाइम? वर्किंग फ्रॉम होम इज वेरी डिफिकल्ट. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो यहाँ पे आप कैसे मैनेज करेंगे? व्हाट डू आई डू नॉर्मली? आज तो मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है, सो आई कांट go to my study, but I've set aside a study table for me, a study area for me, jahan pe I do all my meetings, I do my work. So I wake up, um, you can see कि I'm not wearing a t-shirt, I'm wearing my proper formal shirt, even I'm working from home. I try to make this a habit कि यार जब मैं घर पे काम कर रहा हूँ, that doesn't mean कि मेरी छुट्टी है आज. That means I'm working. So I wake up on time, I have my breakfast, I shower and put on my work clothes. मैं सबसे पहले तो ये करता हूँ कि आई डोंट हैव माय होम क्लोथ्स ऑन. मैं पजामेज में वो नहीं कर रहा होता. आई पुट ऑन माय वर्क क्लोथ्स. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट यू कैन डू टू मेक श्योर दैट यू आर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इवन एट होम. अपनी बेड पे काम ना करें. अपना स्टडी पॉइंट अलग बना लें, अपना वर्क पॉइंट अलग बना लें, ताकि उस जगह पे आप जाएं, मेंटली आपका दिमाग रेडी रहे कि यार इस चेयर पे जब मैं बैठूंगी, यहाँ पे मुझे काम करना है. Once I'm done with this work, then I go on my bed and sit or lie down. तो make sure कि ये जो चीजें हैं, these areas are segregated. Keep your workstation, study zones, या जो cubicles आपके हैं, कुछ भी हैं, meeting areas, इनको clean और organized तरीके से रखें. ये ना हो कि आपने टेबल लग दिया था पढ़ने के लिए और उसमें आपके सारे गंदे कपड़े भी वहां पे जा रहे हैं, आपके बैग भी वहां पे जा रहे हैं, आपका सारा कचरा वहां पे जा रहा है, आप डंप कर रहे हैं. मेक श्योर कि जो आपका स्टडी है दैट्स वेरी क्लीन एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड. आप ये दिमाग में रखें कि ये स्टडी जो है या ये जो एरिया है, सोचें कि ये आपके जो वर्क कोलीग्स हैं वो यहाँ पे आके विजिट करेंगे हर दिन. उसको इतना साफ रखें कि यार जब बाहर के लोग आएंगे कैसा लगे, ये कितना साफ सुथरा लगेगा. मेक श्योर दैट क्लीन एंड टाइडी ऑल द टाइम. ऑर्गेनाइजेशन जो आप करते हैं अपने लाइफ की, when you're organized, it gives you a boost. It does give you a boost of morale and confidence. जहां तक मैं अपने examples दूं, I think when I'm prepared for something, when I've organized my thoughts, my work, it gives me a lot of confidence. I'm actually ready when I'm going for that specific meeting. I'm ready when I'm going for that specific thing. जैसे फर्ज करो आज की चीजें मैंने अलग कर ली थी, 2 घंटे का मैंने मटेरियल अलग कर दिया था. I knew what I have to say. This give me confidence of morale, confidence boost. कि यार सिकंदर, you're organized here, good job, just go in, you'll do great. So when you organize your thoughts, when you organize your work in a way कि ये proper आपको लगे कि ठीक है, this gives you a boost of morale and confidence as well. आपको पता है कि ये आपके 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे में आपने इस तरह की प्लानिंग की हुई है ये 4 चैप्टर्स खत्म करने की कि आपको पता है कि आप कर सकते हैं, if you actually sit and do it. And once you're organized, this actually makes you popular in your organization or among your student friends. तो यही बोलेंगे यार, तुबा से पूछते हैं, she would know कि ये असाइनमेंट कब ड्यू है. तुबा से पूछते हैं, तुबा को पता होगा कि यार ये कौन से पेपर्स के लिए कितना टाइम करना पड़ता है. तुबा से पूछते हैं, हमें हेल्प करे, एक स्केड्यूल बना के दे हमें. So you will become popular in your organization as well as in your student friends when you're organized. This I keep saying कि this is a personality trait. ये आपकी personality को overall help कर रहा होता है when you're organized. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ from my own life, from recent months, years नहीं. अभी जब कोविड स्टार्ट हुआ था,
our work started from home, but still we were working. हम lay off नहीं हुए थे. We were actually working more from home than before. उस टाइम मैंने क्या क्या मैनेज किया, just giving you 2-3 examples. तो मेरे उसमें इंट्रोडक्शन बताया कि आई एम द क्यूरेटर ऑफ कराची ऑफ ग्लोबल शेपर्स. ग्लोबल शेपर्स एक यूथ विंग है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का. और मैं को फाउंडर हूँ बलूचिस्तान यूथ एक्शन कमेटी का, BYAC. बलूचिस्तान यूथ एक्शन कमेटी हमने अप्रैल में बनाई थी इस साल, कि जो कोरोना के जो विक्टिम्स हैं बलूचिस्तान में खासकर, उनको हम हेल्प करें दूर दूर जाके गांव देहातों में. So we managed to do this alongside our work. जो मेरा प्रोफेशनल वर्क था, जो मेरे कोलीग्स का प्रोफेशनल वर्क था, हम सारे काम कर रहे थे, हम सारे अलग एंगेजमेंट हमारी थी. This was something that we started on side. हमने आज तक अभी 15,000 लोगों को राशन दिया है. हमने 4,000 डॉक्टर्स, 4,000 प्लस डॉक्टर्स को किट्स दी हैं. हर किट में एक PPE था, 3 फेस शील्ड्स थे, सर्जिकल मास्क थे 5, एक N95 मास्क था, हैंड सैनिटाइजर था. एक किट बनाई थी हम लोगों ने. तो 4,000 प्लस हम लोगों ने किट्स दी हैं डॉक्टर्स को, गांव देहातों में, फुल गांव देहातों में, क्वेटा वगैरह में नहीं, बाकायदा गांव देहातों में. और हमने 30 लाइब्रेरीज को सपोर्ट किया है विद 30,000 प्लस बुक्स जो हमने डोनेट किया उन्हें. एवरीथिंग ऑफ दीज एफर्ट्स वर पॉसिबल थ्रू टाइम मैनेजमेंट. फर्ज करें मैं अगर काम ना करूं, अपनी प्रोफेशनल जॉब नहीं करता, तो मैं ये नहीं कर पाता सही से. उसको मैंने इस तरह मैनेज किया कि मैं गिल्टी फील ना करूं कि यार वो मुझे पे कर रहा है, मैं वहां पे काम नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे अपना टाइम दे रहा हूँ. मुझे इस तरह मैंने मैनेज करने की कोशिश की कि वो काम भी मेरा होता जाए और ये काम भी मेरा साइड साइड पे होता जाए. और अल्हम्दुलिल्लाह बिल गेट्स की जो अभी 7 लिस्ट आई थी, 7 अनसंग हीरोज, एक में हमारा नाम था पाकिस्तान से. वी वर द ओनली वन फ्रॉम पाकिस्तान. एंड अगेन आपको ये मिसाल देने का मकसद ही सिर्फ यही है कि जब आप ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जब आप चीजें उस तरह सही से करते हैं, तो जो एफर्ट्स हैं आपकी वो बहुत इजी हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ड्राइव बनाई शुरू में ही, हमने फाइनेंसेस का अपना डोनेशन बॉक्स बिल्कुल सेपरेट कर दिया कि ये हमारी फाइनेंसेस है, कहाँ पे जाएंगी, कहाँ हमारा ये फिक्स होगा, ये सब कुछ हमने अलग कर दिया. कौन हमारे वॉलंटियर्स होंगे, हमारे साथ कौन काम करेंगे, उन सब की हमने लिस्ट बना दी, उन सबको रीच आउट किया. हर हफ्ते हम लोग करते थे कि एक कॉल करते थे फोन पे, अगर किसी के घर में इंटरनेट नहीं है, या तो व्हाट्सएप पे एक SOPs की गाइडलाइंस हम सब वॉलंटियर्स को बताते कि ये SOPs हैं. आप घरों पे जाके जब राशन देंगे, आप उनके घर के साइड पे राशन रखेंगे, नॉक करेंगे और पीछे हटेंगे. यू डू नॉट गिव देम द फूड. आप उनकी तस्वीरें नहीं लेंगे. आप मेक श्योर करेंगे कि उनको ये ना लगे ये चैरिटी है, उनको ये लगे कि कम्युनिटी सपोर्ट है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कल आप किसी और को सपोर्ट करेंगे. सो दिस और एवरीथिंग ऑफ दिस comes down to how you organize these things. अब अगर मैं प्रोफेशनल जॉब में होते हुए अगर ये कर सकता हूँ, आप तो डेफिनेटली कर सकते हैं, आपके पास तो और भी टाइम है. लेकिन टाइम इज अ वेरी स्केर्स रिसोर्स. अगर आप में से कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इकोनॉमिक्स. कि हमारे पास स्कैर्सिटी मतलब हमारे पास कमी है रिसोर्सेज की. हम इतने कम रिसोर्सेज को कैसे सही जगहों पे इस्तेमाल करेंगे. टाइम इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. टाइम से ज्यादा स्केर्स तो कोई रिसोर्स नहीं है. लेकिन कोविड का टाइम, हम यही कहते हैं ना, टाइम कहाँ गया पता ही नहीं चला. अभी तो कोविड स्टार्ट हुआ था. जो 6-8 महीने निकले बगैर काम किए, बगैर पूरा दिन घर पे रहे, पता ही नहीं चला. लेकिन टाइम डज नॉट स्टॉप फॉर एनीवन. देयर इज नो टू ओपिनियंस अबाउट इट. एंड गिवन कि ये इतना स्केर्स है, इतना नायाब है, वी हैव टू मेक श्योर कि हम इसको सबसे ज्यादा इफेक्टिवली यूज करेंगे. दोबारा अगर मैं और कुछ और लोग मिलके जो हम फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, अगर हम कर सकते हैं कुछ ना कुछ, यू कैन डेफिनेटली डू इट. द ओनली पॉइंट इज हाउ यू ऑर्गेनाइज योर टाइम. ठीक है, आर देयर एनी क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट? ठीक है, आई होप डन. मुझे बताएं, कुछ भी क्वेश्चन हो प्लीज लिखते जाएं. और क्या हमें बेनिफिट मिल सकते हैं? जी, हमने पहले बात की कि क्यों टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, कैसे करेंगे, एंड देन what are the benefits of time management and the leaders who are using this time management. It helps you make plan better.
मैं सारी चीजें आज करूंगा, then there's a lot of stress and anxiety to me. मैं करना मुझे वही है, मैं आज प्लान करूं, मैं कल प्लान करूं, करना मुझे वही काम है। लेकिन अगर मैं आज प्लान करूंगा आज के लिए, तो मेंटली मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाऊंगा, मुझे एंजाइटी हो जाएगी कि यार फर्ज करें ये जो मेरा सेशन है सर्कल का 10:30 बजे है, सोचो मैं उठूं 8:30 बजे और या 9 बजे मैं कहूँगा ओह यार ये सर ये प्लान भी तो करना है, और इसका कैसे करूंगा मैं। तो इन चीजों के लिए देयर इज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। करना तो मुझे है, आज करूं या कल, देखिए अगर मैं कल करूंगा या कल करता तो इट वुड हैव बीन अ लॉट इजियर, इट नॉर्मली वुड बी अ लॉट इजियर फॉर मी। इज द सेम थिंग फॉर यू टू मेक श्योर कि जब आप कुछ चीज करने जाएं यू प्लान बिफोर, ताकि ये जो एंजाइटी और स्ट्रेस हो ये ना हो। एक क्वेश्चन आया है कि कुछ काम बहुत सडनली आ जाते हैं जिसकी वजह से सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए आवर लाइफ इज नॉट परफेक्ट। किसी ने प्लान नहीं किया था कि यार कोविड आएगा, है ना? किसी ने प्लान नहीं किया था, किसी को नहीं पता था कोविड आएगा। किसी ने अपने नॉट इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम्स आपने सोचा होगा कि यार 6-8 महीने से हम यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, घर पे होंगे। किसी ने भी नहीं सोचा था। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन अ ह्यूमन लाइफ, इन आवर लाइफ, जिनके लिए हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड क्राइसिस सिचुएशंस। जैसे मैंने आपको बहुत शुरू में एक एग्जांपल दी कि एक लीडर का काम है प्लान अहेड, पर आल्सो क्राइसिस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहे। मैंने आपको वीडियो दिखाई अभी, जो कॉमेडी वाली वीडियो थी, एक्सक्यूज मी, उसमें एक था कि प्लान, व्हाट वाज द नेक्स्ट एलिमेंट, कोई किसी को याद है? एक तो था प्लान करना लीडरशिप का, देयर वर टू अदर थिंग्स, यस एग्जैक्टली मुनीबा, बैकअप। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स we have to figure out a backup, we have to figure out the crisis situation. डिस्टर्ब हो जाता है आपका स्केड्यूल, इम्प्रोवाइज करें, एग्जैक्टली इम्प्रोवाइज अलोंग द लाइन। इम्प्रोवाइज का मतलब क्या है? जो आपके सिचुएशन उस वक्त आता है उसी वक्त आप हैंडल करना सीखते हैं, इम्प्रोवाइज करें। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस डू हैपन, लेकिन आप अपने जो प्रॉपर आपकी प्लानिंग है उसको डिरेल ना होने दें। अगर फर्ज करें मैंने गोल बनाया हुआ है कि 4 महीने में मुझे ये 5-6 सब्जेक्ट्स मुझे खत्म करने हैं, ठीक है? आपने हर दिन के प्लान बनाए हुए हैं, हर हफ्ते के प्लान बनाए हुए हैं। सैटरडे संडे को आपने ऑफ किया हुआ है अपना। अचानक से 1-2 दिन आपकी खाला आपके घर आ जाती हैं, कजिन्स आ जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। 2 दिन आपके वहाँ पे ज़ाया हो गए। हाउ डू यू मेक श्योर कि ये 2 दिन आप आगे यूज़ करें? देखिए ये डेफिनिटली एक डिसरप्शन है आपके प्लानिंग में, बट दिस इज़ नॉट द एंड। दिस शुड नॉट डिस्करेज यू फ्रॉम प्लानिंग अहेड। ये तो आपको बता रहा है कि लाइफ इज नॉट सिंपल। ये तो आपके लर्निंग लेसन्स हो गए ना। तो यहाँ पे फर्ज करें जो 2 दिन की चीजें आपने यहाँ पे करनी थी, वो थोड़ा-थोड़ा करके आप नेक्स्ट वीक में डाल दें या सैटरडे संडे को डाल दें इंस्टेड ऑफ द वीकेंड। आप दिमाग में ये रखें कि यार ये जो कजिन्स मेरे आए थे, ये मेरा वीकेंड काउंट करूँगी मैं, और जो मेरा रियल काम है, वो मैं वहाँ पे जाके सैटरडे संडे करूँगी, इफ इट मेक्स सेंस। ठीक है? सो डू नॉट be discouraged when a disruption comes. Life, life is not simple. This I'm telling you, with experience, life is full of challenges. Alhamdulillah, we are still okay कि हम हमारी हमारी जॉब भी है, इवन कोविड के टाइम पे भी हमारी जॉब थी। There were so many families, so many people who lost their jobs, जिनके पास कुछ भी नहीं था। जब हम बलूचिस्तान में ये राशन वगैरह काम कर रहे थे, एक देहात है जहाँ पे हम गए थे, ओरनाच के नाम से। ओरनाच में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अभी आई तक नहीं है इलेक्ट्रिसिटी। और जब हम वहाँ पे राशन बैग्स बनाने गए थे तो हमें दाल नहीं मिल रही थी, जो दाल हम डालते हैं राशन बैग्स में। सो लाइफ इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस विद अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी वेरी चैलेंजिंग। और कोविड की वजह से तो और भी बहुत सारे लोगों को अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, मतलब लाइफ और डेथ की उस एज तक आ गए थे कि लॉकडाउन होगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह तो हम बहुत ज़्यादा वो हैं, सेफ हैं इस चीज़ से कि हमारे पास कुछ है करने को, कुछ है खाने को। सो दीज़ डिसरप्शंस आर पार्ट ऑफ लाइफ।
do not be scared of these disruptions. Which I think someone raised a hand. कौन था? शहरयार, आपने वो किया था? Unmute करें जिसने भी raise किया था hand. Yes, sir. It was mistakenly. अच्छा, it's a mistake. Okay. ठीक है. Are there any questions right now? अपनी एग्जांपल्स से मुझे क्वेश्चन पूछे कि यार सर मुझे मेरा ये प्रॉब्लम था एक टाइम पे, या ये सिचुएशन आ गई थी, एंड आई विल टेल यू कि उस सिचुएशन में क्या मैं करता या क्या आपको करना चाहिए था, या वी एज अ ग्रुप विल थिंक ऑफ समथिंग कि यार और क्या क्या हो सकता है उस सिचुएशन में. सो ट्राई टू रिमेंबर दोज इंस्टेंसेस, क्योंकि आपके पास ये टाइम है. देखिए, डू नॉट बी फियरफुल, डरे नहीं क्वेश्चन पूछने से. This is part of your life. This is a journey that sort of helps you grow in tomorrow. मतलब जो आप यूनिवर्सिटी खत्म करेंगे, the life will be very different. So try to adopt the good habits from now. देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने से क्या होगा? What is the worst that could happen? Ask yourself this question. Nothing. कुछ भी बुरा नहीं हो सकता. Stupid question? There is no stupid question. I don't believe in stupid questions. अच्छा, there are 2 raised hands. Amazing, good job. सबसे पहला raise hand है सरिश, आप पूछा. हेलो जी सर, आपको बात आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है. जी सर, मुझे अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना था कि बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट, कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ मैं, एमकॉम में फाइनल ईयर. ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो है मैं जो हूँ एक कोचिंग सेंटर में टीचिंग भी करती हूँ. ठीक, और उसके ठीक है. साथ साथ मैंने अभी रिसेंटली अपना एक साइड बिजनेस स्टार्ट किया है. ठीक है, ऑनलाइन. तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि टीचिंग प्लस स्टूडेंट लाइफ एंड प्लस अगर आपको अपना कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो ये सब मैनेज करने के लिए मैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो भूल जाती हूँ. टीचिंग के हवाले से भी जैसे क्लास लेने जा रही हूँ, तो मुझे ये याद तक नहीं रहता कि मैंने कौन सा टेस्ट दिया था स्टूडेंट्स को, या उसकी अनाउंसमेंट कब की थी, क्या की थी. वो सब चीजें मेरी स्किप हो जाती हैं इन सब चीजों में. तो इन सब चीजों को कैसे मैनेज करें एक साथ, अगर 4 चीजें हम कर रहे हो एक ही दिन के अंदर, तो ये बहुत मुश्किल होता है. फिर इसके साथ साथ अगर एज एन आप कोई लड़की हो तो आपको घर को भी देखना होता है, घर में भी सारे सब चीजें देखनी होती है. तो इस हवाले से कुछ आप अपनी टिप्स दें. That's a very good question, and a very good sort of an area as well कि यार इतने सारे लोग, इतनी सारी चीजें हम लोग कर रहे होते हैं, किस तरह हम इनको मैनेज करेंगे. I think that's part of everybody's life as well. We constantly have to do a lot of things. लेकिन जैसे मैंने शुरू में सर एक एग्जांपल दी थी कि ह्यूमन जो हमारी मेमोरी है इज नॉट वेरी लॉन्ग. हम जो चीज मुझे आज समझ में आ रही है, जो आपको मैं पॉइंट्स आज बता रहा हूँ, आपको आज शायद पूरे समझ में आ जाए, लेकिन अगर आपने नोट नहीं किए हैं, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा चीजें आप कल भूल जाएंगे. सो ट्राई टू मेक श्योर कि जो हर दिन की चीजें हैं वो आप हर दिन कहीं ना कहीं नोट डाउन करते हैं. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी, मैं अपने आप को वॉइस नोट भेज देता हूँ कि यार आज मैंने ये चीजें की है. आप एक काम करें, अपने आप को वॉइस नोट भेज दिया करें, या एक रिमाइंडर अलग से ऑर्गेनाइज करें कि यार ये आपका रिमाइंडर डेक है, ये आपका रिमाइंडर डेक है जो पहला हिस्सा है डायरी का, ये आपका कोचिंग से रिलेटेड है, इसमें और आप कुछ नहीं लिखेंगी. हर दिन जब भी आप कोचिंग से खत्म होगी, उस दिन का आप डेट लिखेंगी और लिखेंगी द की पॉइंट्स, द की टेक अवेज. इट कुड बी 2 words, it could be 2 sentences, it could be 4 sentences or whatever. This could be your organizational way. अब ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना, टाइम को मैनेज करना, दिस इज एन आर्ट एंड दिस इज डिफरेंट फॉर एवरीवन. एक फॉर्मूला नहीं है जो सबके लिए काम कर सकता है. हो सकता है जो सॉफ्टवेयर ट्रेलो है वो मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है, हो सकता है आपके लिए वो इतना ना हो, लेकिन जो बेसिक टेक्निक्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं एंड कॉन्स्टेंटली डेवलप ऑन दोज टेक्निक्स. जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आज आपको अपनी एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ
और जो मैं अभी कर रहा हूँ, this is all through trial and error, this is all through learning and experience. कोई शुरू से ही मैं इसी तरह मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ. We're all learning from this thing. So Sahrish, you can start developing these things and see what works for you. हर किसी के लिए एक चीज काम नहीं कर सकती. आप ट्राई करें, पहले डायरी में लिख दें, डायरी को सेगमेंट कर दें 3 हिस्से में कि दिस इज योर वर्क, दिस इज योर होम, दिस इज योर यूनिवर्सिटी. ताकि एटलीस्ट जब आपको आप कल दोबारा क्लास के लिए जा रहे हैं, आप सिर्फ वो पेज खोल दें, वहां पे आपका डेट लिखा है, लास्ट क्लास ऑफ दिस इज द की पॉइंट्स. 2-3 की पॉइंट्स हैं. ठीक है. I think we had another question from Zishan. Zishan? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर एक मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और आपके रिव्यूज जानना चाहूँगा सर. सर अक्सर क्या होता है कि हम पे बर्डन होता है काम का काफ़ी ज़्यादा, 3-4 काम एक साथ करने होते हैं, तो उसमें ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से 100% दें हर काम को, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नहीं दे पाते. कुछ काम 1-2 हम कर लेते हैं मुकम्मल, लेकिन 1-2 रह जाता है. लेकिन जो हमें फीडबैक मिलता है, जो हम काम कंप्लीट कर लेते हैं, उस पे हमें एप्रिसिएशन इतनी इंटेंसिव नहीं मिलती जितनी हमें काम ना करने पे डेप्रिसिएशन इंटेंसिवली मिलती है. तो ये काफ़ी जो है डिमोटिव सिचुएशन हो जाती है, डिमोरलाइज़ हो जाता है इंसान. तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताएँ कि किस तरह से हम इन हालात में अपने आप को मोटिवेट रख सकें. It's a very, very valid point, Zishan, and I completely agree with you. मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था लास्ट ईयर इन श्रीलंका. तो ये कैंडी एक जगह है, वहाँ पे हमारी ये कॉन्फ्रेंस हुई थी. कॉन्फ्रेंस में एक लड़के ने एक बहुत अच्छी बात कही कि when the conference finished, he said this very good words. He was from, I think, Kenya, केन्या से था या युगांडा से था, आई थिंक केन्या से ही था, नायरोबी से. सो ही सेड दीज वर्ड्स कि यार आपने कॉन्फ्रेंस बहुत जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू कि आई सी यू. दीज वर्ड्स, आई सी यू. मैं देख रहा हूँ कि किस तरह आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है. आई सी यू कि किस तरह आप लोगों ने पानी के फिल्टर्स यहाँ पे लगा दिए हैं. आई सी यू कि आप किस तरह हमारी हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं. क्योंकि जब चीजें परफेक्ट हो रही होती हैं, वी डोंट रियलाइज कि अगर ये ना हो तो कितना हमें नुकसान हो सकता है. डू यू गेट व्हाट आई मीन? कि फर्ज करें अगर फिलहाल जैसे ये जूम का सेशन सर्कल वालों ने अरेंज किया और दे आर एट द बैक हैंड ऑफ दिस सेशन, दे आर मेकिंग श्योर कि एवरीथिंग इज ऑन टाइम, एवरीथिंग इज परफेक्ट. 10:30 बजे स्टार्ट हो, 12:30 बजे तक रिकॉर्डिंग चल रही हो, ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर्ड. we are happy with it. लेकिन imagine अगर ये ना होता, then we would be lost. So we have to understand कि this is human nature. एक हद तक मैं कहूँ, it's a bad part of human nature, but we have to start from ourselves. At least हम अपने अंदर ये एहसास लेकर आए कि हम ये नहीं करेंगे, जीशान और सिकंदर ये नहीं करेंगे. एटलीस्ट अगर बाकी लोग कर भी रहे हैं, I do know कि a lot of times in the work atmosphere, in these challenges, people do get demotivated. There's nothing wrong about being demotivated. हम सब इंसान हैं, हम सब demotivate होते हैं at some stage. Try to figure out what are the things that further motivate you. Ask yourself the question कि आप ये जॉब कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, आपकी मोटिवेशन क्या थी ये स्टार्ट करने में? आपकी फैमिली है सबसे बड़ी मोटिवेशन. Think of that. Think of the things that further motivate you. For example, जैसे मैं अगर ये कर रहा हूँ, for me the motivation would be to learn from the international, the global phenomena, the global thought leadership. Bring back learnings to Pakistan. That's my motivation. अगर एक दिन मेरा सुपरवाइजर हार्श भी होता है मुझसे, या पूरे हफ्ते भी हार्श होता है, I just motivate myself in a way that I am giving my 100%, and I want to learn. This is my motivation. So you have to constantly figure out कि आपकी मोटिवेशन की एलिमेंट्स क्या क्या चीज़ है, उनसे अपने आप को मोटिवेट करते रहें. मेरा जो पहला जॉब था वो एजुकेशन सेक्टर में था. डिफरेंट फंडेड जो कैंपेन थी वो एजुकेशन पे थी. सो आई वाज द कोऑर्डिनेटर इन कराची वेयर आई वाज वर्किंग विद अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स. और गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देख के मैं बहुत ज़्यादा शुरू में डिमोटिवेट होता था कि यार
बच्चे कैसे बैठ रहे हैं यहाँ पे, कैसे पढ़ रहे हैं, क्यों मैं कुछ नहीं कर रहा, क्यों मैं हेल्पलेस हूँ, क्यों गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, सो मेनी क्वेश्चंस एंड so many times I felt so demotivated कि यार मुल्क का कुछ बनना ही नहीं है. But then I also saw the very positive side of the country. I saw कि एक जगह पे जैसे लियारी में एक बंदा था, वो एक जमादार था, एक पियून था अपने स्कूल में, and his school closed down. So उसने क्या किया कि उससे ये रहा नहीं गया, तो he went to a lot of other schools. उनको बोलने लगा कि यार हमारे पास टीचर नहीं है, पैसे नहीं है, स्टूडेंट्स हैं, आप वॉलंटियर बन सकते हैं. And his school was running after 4 years still. तो वो प्यून बाकी स्कूल्स गया है, वहां से फ्री के टीचर्स लेकर आया है और यहाँ पे पढ़ा रहा है. So these are the positive sides that you have to pick that further um, activates your love for humanity. कि यार अभी भी कुछ अच्छी चीजें भी चल रही हैं, मुझे इन्हीं की वजह से मोटिवेट होना है. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए वो मोटिवेशन फैक्टर था. मैं उस बंदे का सोचता था, उन स्टूडेंट का सोचता था, वुड फर्दर मोटिवेट मी. आप भी वो पॉइंट्स निकालें जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करती हैं, जो आपकी लाइफ से मैच करती हैं कि यार ये भी तो हो रहा है ना. अगर वो डिस्करेज कर रहा है, ये भी तो है, फैमिली भी तो है, फैमिली भी तो अप्रिशिएट कर रही है, यहाँ घर पे मुझे सर पे बिठाया हुआ है अम्मी ने, अब्बू ने, ये भी तो है. सो ट्राई टू फिगर आउट दीज पॉइंट्स विच फर्दर मोटिवेट यू इफ इट मेक्स सेंस टू यू. और कोई क्वेश्चन और कोई थॉट? देखिए जब when you give these examples, ये और क्लैरिटी हो जाती है, आपको भी क्लैरिटी हो जाती है, मुझे भी आइडिया हो जाता है कि यार आप किस किस एंगल से मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो जाए कि मैं बात कर सकूं. और कि मैं ऑनेस्टली whenever I'm giving a session, I try my best कि जो बुकिश रिजिड लैंग्वेज है उससे थोड़ा हट के मैं बात करूं. I do read a lot, but I try my best कि जब मैं किसी चीज पे बात कर सकता हूँ, मैं सिर्फ उसी पे बात करूंगा. आई थिंक सर्कल ने मुझे कहा था एक सेशन देने को फ्रीलांसिंग पे. I was very busy and I apologized to the Circles team that I could not go through the email, and I'm like ठीक है मैं कर लूंगा. Then I realized यार ये तो freelancing पे बात हो रही है, तो मैंने किया नहीं है, and it's just unfair that I will be giving a talk on freelancing when I've not done it. I can still do it. I have read about freelancing. I have maybe a bit of experience. I have a lot of friends who are working freelancing. We personally work with freelancers. But हो सकता है कि मेरी जगह कोई और अच्छा बंदा या बंदी आ जाए जो इस सेशन को मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा कर सके. It just will be unfair to students अगर मैं उस पे दूं. तो you have to figure out these areas जहां पे आपको लगता है आपका meaningful contribution रह सकता है. Any question? एक और चीज that has helped me, that I try my best कि there's a balance between work and life for me. There's a balance within my work. जब मैं 9 to 5 काम कर रहा हूँगा, there's a balance after that as well. What does it mean? It means कि जब मैं काम कर रहा हूँगा, I will take coffee breaks. That's very must for me. I will try कि जितने भी मेरे coffee breaks हैं वो मैं ज़ाया ना करूँ. There's a time that I go for a walk around the office. I make sure कि मैं बैठूं ना इतना ज़्यादा लैपटॉप के सामने या कंप्यूटर के सामने. I keep wandering around. I have sometimes I have a meeting when I'm walking around with my headphones on and I'm having that meeting over call. So you make sure कि आपकी भी ये बैलेंस रहे, एक लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस. आप 9 से 6 या 8 से 6 अगर आपकी एजुकेशन है, आपकी बाकी काम है, आप कुछ घंटे अपनी फैमिली को भी दें. कि this re-energizes you, this recuperates your life. So you make sure कि जब आप जो भी कर रहे हो, there's a work-life balance. This
एड्स टू योर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स कि आप फर्दर ऑर्गेनाइज हैं, आपने एक बैलेंस किया अपनी लाइफ को। मैं कितने इस तरह के लोगों से मिला हूँ विच आर अमेजिंग पीपल बट दे आर वर्किंग नॉन स्टॉप। आई स्वेयर टू यू, आई एम नॉट किडिंग, जो मेरा लाइन मैनेजर है, हम कल उसको बोल रहे थे कि प्लीज ब्रेक ले लो 2 दिन का। It's been a while, it's been like almost like 8 months or kitne, he hasn't taken a day or two off. So we were telling him to take a break and we were forcing him. I'm like, dude, I'm going to manage it. Aap chale jao, I'm here, I'll manage. Aap 1-2 दिन break ले लो. And we were like, there were a couple of us, हम लोग उसका time देख रहे थे और calendar पे कि आप इस दिन off कर लो please, या इस दिन off कर लो. So there are workaholic people which are amazing people as well. लेकिन I would say कि आप अभी से अपनी personality में ये built in कर लो कि you need to have a balance of work life. Balance क्या है? मेरा phone जो है 10 बजे के बाद ये सब कुछ dark mode में चला जाता है. I do not get notifications after 10 p.m. I only get calls from my family members after 10 p.m. या some of my close friends या मेरे जो supervisor है उससे. That's it. उसके अलावा 10 बजे के बाद मुझे कोई कॉल नोटिफिकेशन ही नहीं आती. I've turned it off क्योंकि आई नो पूरा दिन मेरा फोन ऑन है, पूरा दिन मैं काम कर रहा हूँ. 10 बजे के बाद आई नीड माई ओन टाइम एटलीस्ट. सो यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज इन सच अ वे कि it brings a balance to your life. Don't overload yourself. बहुत सारे टाइम पे इवन नहीं करना भी is smart. Learn to say no sometimes. हर बात पे हाँ नहीं बोलते. बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें हैं. यू नो कि आपका कभी कभी आपके एडवांटेज भी आपसे लिया जाता है. आपके दोस्त भी लेते हैं, आपके कोलीग्स लेते हैं, आपके सुपरवाइजर्स ले रहे होते हैं. यू ट्राई टू मेक श्योर दैट यू डेवलप दिस हैबिट ऑफ सेइंग नो समटाइम्स कि यार नहीं, 6 बजे के बाद मेरा टाइम है, फैमिली का टाइम है, संडे इज माई फैमिली टाइम, या संडे इज माई फ्रेंड्स, सैटरडे इज माई फ्रेंड्स. से नो कि यार नहीं, इस दिन तो मुझे कुछ करना ही नहीं है. ठीक है, सम develop this habit from now. These are all building your personality first and they're adding to your organizational skills. कि आप किस तरह अपने टाइम को properly manage कर रहे हो from this angle, from this time. And you guys are all very young, you're in the university, you can develop these habits very quickly. I'm very organized in terms of my टाइम. सो अगर मैंने मीटिंग का टाइम रखा है 9 बजे तो मैं वहां पे होता हूँ 8:45. कभी कभी तो ये होता है कि मैं 15 मिनट पहले गाड़ी में होता हूँ और मैं गाड़ी घुमा रहा होता हूँ कि यार अच्छा चलो 10 मिनट यहीं गाड़ी घुमाता हूँ एंड देन आई पार्क इट. मैं पहले क्या करूंगा यहाँ पे. सो मेरी ये साइकी होती है. जब मैं सो आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम यूके. जब मैं वहां से वापस आया था तो शुरू में कराची वॉज वेरी हार्ड फॉर मी क्योंकि अगर 9 बजे बोला है तो मैं 9 बजे वहां पे हूँ और सारे लोग 10 बजे पहुंच रहे हैं. शुरू में तो मुझे सेंस ही नहीं बन रही थी यार, 9 बजे मुझे बोला था. उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरे दोस्त जब प्लान करते थे दे वुड कॉल मी सेपरेटली कि यार सिकंदर तुम 10 बजे आना, हमने सबको 9 बजे बुलाया हुआ है, तुम 10 बजे आ जाना. क्योंकि दे नो कि मैं टाइम पे अकेला बैठा हूँ तो 1 घंटा कॉन्स्टेंटली कॉलिंग देम कि मैं पहुंच गया हूँ. So, but you have to develop these habits. You have to bring them in your personality that people know you and people respect you for this. कि यार ये बंदा टाइम पे है, इसको मैंने एक बार बोल दिया, he said yes, then I know that he's going to deliver it, then I know that he's going to bring it. You have to develop this in your personality in such a way. बाकी कराची आइट जो कराची वाला वो है वो तो हम सब में है. वो तो हम पूरी जिंदगी बस शारा फैसल पे पहुंच रहा हूँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ये तो है ही है सब में. लेकिन इसके अलावा in general develop the habit of being punctual in your personality. This creates a respect for you, a separate respect. And I would say whenever you're working, enjoy your work. Do not just go for work. Go for something that you actually enjoy. आप लोग कौन से ईयर में कराची यूनिवर्सिटी के? Is it first year, second year, third year? क्या आपका बैकग्राउंड वैसे क्या है? Sorry, I didn't ask before. फाइनल, ठीक है, एक फाइनल में है, बाकी फर्स्ट.
मतलब ज्यादातर मतलब लोग फाइनल में हैं. That's very good. आप आपका कब टर्म कब खत्म हो रहा है? January में एग्जाम्स हैं इंशाल्लाह. So second year is final year and we all are in the final fourth semester. अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त. तो जनवरी में एग्जाम्स, फरवरी में फारिग. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. That's amazing. चलो, good job and good luck to you all. I hope you all succeed the best way, inshallah. Or just give me a second. ठीक है, amazing. I think you are a very good bunch of people and I wish you all the best. अच्छा, contact में रहिएगा if you need anything from me. Circle has my contact. Or at this point, are there any other questions? So no doubt time management is important, but if someone become late in making their career, they become frustrated even though it looks disturbed. How they should manage themselves now when the person suffering from it? That's a very good question, Zoya. And the frustration is another part of life. I keep saying all your concerns are valid, but they are again part of life that we are sharing. बहुत सारे लोगों को शुरू में जॉब नहीं मिलती, बहुत सारे लोगों को टाइम लगता है, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड. ये टाइम इस तरह के, a lot of organizations are not hiring. But we have to do our best. We have to think outside the box. मेरा एक session I think है, so the team from Circles here. Are these guys allowed to attend the resume wala session या नहीं? Yes, they are. Okay, so I will be doing a session on resume writing. Please do join it. I think that would be very, very helpful for all of you. Because I have recruited a lot of people at KSBL and we were recruiting at DH. And I will tell you from my own experience how to write a good resume. I wouldn't say perfect resume, but a good resume based on your own profile, based on the jobs that you apply. So do attend that session. And Zoya, it does get frustrated at some point that कि आपका जो career है वो उस तरह start नहीं हो रहा. But that's not the end. You have to make sure you keep reminding yourself that there's just a bump on the road. आगे जाके सब कुछ सही होना ही है इंशाल्लाह. ठीक है? Any other point, question? At this point, I think I'd like to thank you, Sikandar, for taking out time for this session. And I think this was very informative and insightful. I'd like to thank the audience as well for taking out time to attend the session, and our sponsor FNF. We'll be happy to take questions, and I'll attach the link of the feedback form in the chat here. You guys can fill this form, and even if you have any feedback right now, you can share with us. Perfect. I think sounds good.
Guys, you're more than welcome to get in touch with me through Circle's team. I'll be happy to answer any more questions as well. Okay? And I wish you all the best for your exams. And I hope to see you guys for the resume one as well. Okay? Thank you. Thank you guys. Take care. Bye-bye. You too. Bye bye. Allah Hafiz.